वो पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। मेरे पास खूब केसेस आते हैं ऐसे कि हमने वहां से 2 लाख की मेडिसिन ली थी। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि बेटा अगर आपको सच में ही एक छाती चौड़ी करके डॉक्टर बनना है और आप किसी को गुलाम रहना नहीं चाहते, प्लीज डू आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। हर दिन 100 लोगों को आप फ्री में खाना डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और हमने पुणे से 4 जो कन्याएं हैं उनको हमने गोद लिया। शर्म एज ए डॉक्टर है कि सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिस करने की, उसकी रेपुटेशन कम नहीं होती है, ज्यादा होती है। Good evening, everyone. Welcome to yet another podcast by Pranabhisa Gurukul. And on behalf of everyone, I invite everyone to the podcast Sexology Secrets Beyond BAMS by Dr. Ranjit Singh, sir. As we all know, sir is India's #1 Ayurvedic sexologist. Good evening, sir. Sir, am I audible to you? So, are you there? Yes, good evening, good evening. Namaste, sir. Namaste. And on behalf of everyone, sir, I welcome you. And before proceeding with the session, I would just like to brief something about sir, which we already know. Sir, Dr. Ranjit Singh, founder and chief consultant, Samdosh Ayurved Hospital, sexology, medicine, infertility, and lifestyle specialist. Dr. Ranjit Singh, sir, is amongst the emerging young leaders in contemporary Ayurvedic clinical practice, known for his practical, patient-centric, and evidence-informed approach towards sexual wellness, infertility, and lifestyle medicine. At a remarkable young age, he established himself as a successful clinician, author, educator, and healthcare entrepreneur. Youngest Author Award recipient at World Ayurveda Congress WAC in 2018. Sir also is an author of the book Padarth Vigyan, and there's a point to note that he published this book while pursuing the 3rd year of BAMS, demonstrating exceptional academic excellence early in his medical journey. Contributed 1,000 plus medicinal and educational articles to leading healthcare platforms including My Upchar, Nirog Street, Royal Wellness, Ayurworld, etc. Sir is also founder of Samdosh Ayurved Hospital, Noida, which is located in Uttar Pradesh, a rapidly growing center dedicated to Ayurvedic healthcare, infertility management, and sexual wellness. Successfully, sir, managed and guided 95,000 plus, I repeat, 95,000 plus patient consultation within just 5 years of active clinical practice. Recipient of Swami Vivekanand Adarsh Ratna Saman in 2023. Sir also is honored as a best fertility doctor in Delhi NCR 2025. Also, this doesn't end here. Renowned speaker, educator, and mentor for Ayurvedic practitioners seeking practical clinical excellence and ethical practical growth. So dedicated to the field, I welcome you, sir, and thank you so much for joining with us today. थैंक यू सो मच। सभी एक तो जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे यंग हैं, कुछ डॉक्टर्स बहुत ही सीनियर हैं मुझसे। आई थिंक मुझे लगता है कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स से मेरी बात हुई है बिफोर दिस पॉडकास्ट, जैसे हमने कोर्स लॉन्च किया था, कि जिनकी प्रैक्टिस को मेरी एज से ज्यादा हो गए। तो सबसे बड़ा डाउट या क्वेश्चन ये था, ही इज वेरी यंग पर्सन, तो हम कैसे किसी से कुछ चीजें सीखें। मतलब डाउट रहता है कि क्या सच में इनको आता होगा या सच में कुछ ऐसा किया होगा। मेरे कई सारे जो स्टूडेंट हैं, मेरे जूनियर्स हैं, तो वो पूछते रहते हैं कि बॉस आपने तो तैयारी कर ली, क्योंकि हमारे यूपी में सीनियर को बॉस बोला जाता है कि बॉस आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, मुझे कुछ टिप्स दीजिए, मुझे कुछ करिए। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि बेटा अगर आपको सच में ही एक छाती चौड़ी करके एक वैद्य बनना है, डॉक्टर बनना है, और आप किसी को गुलाम रहना नहीं चाहते, प्लीज डू आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। तो हम जो पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके पीछे मोटो यही है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स क्यों नहीं इतना पैसा कमा सकते हैं। एक जब झोला छाप डॉक्टर कमा सकता है आयुर्वेद में सेक्सुअल मेडिसिन के प्रैक्टिस करके, ऐसे भी मैं बहुत सारे पेशेंट को जानता हूं जो एक एक किसी झोला छाप से, किसी तंबू वाले से इतनी सारी मेडिसिन, इतना 2.5-3 लाख रुपए महीने की मेडिसिन लेके आ जाते हैं। और वो भी कौन, ऐसे अनपढ़ आदमी नहीं, वो पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं मैं
मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, मेरे पास खूब केसेस आते हैं ऐसे कि हमने वहां से 2 लाख की मेडिसिन ली थी। पर आप तो एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर, यू हैव डिग्री, आपके पास राइट्स हैं, सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं? होता क्या है कि हमारा अप्रोच नहीं होता। और दूसरा जो शर्मिंदगी है, जो शर्म एज ए डॉक्टर है कि सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिस करने की, उसको हम कोशिश करेंगे कोर्स से सीखें कि कैसे आपको एज ए डॉक्टर प्रेजेंट करना है, एज ए रिप्रोडक्टिव मेडिसिन अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपकी रेपुटेशन कम नहीं होती है, ज्यादा होती है। अगर मैं आज किसी को बोलता हूं मैं सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, कहीं भी, चाहे कोई मीटिंग्स हो, कोई बैंक से कोई आया हो, या कोई पूछे आप कौन सी मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, सेक्सुअल मेडिसिन, तो वो मुझे अकेले में जाके स्पेशली बोलते हैं, सर कब आपका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप यही जॉइंट डिसऑर्डर है कुछ और प्रैक्टिस कर रहे तो शायद उनके पास ऑप्शन मल्टीपल थे, लेकिन सेक्सुअल मेडिसिन में ऑप्शन मल्टीपल नहीं होते। ठीक है, तो मुझे लगता है, और बाकी तो बहुत कुछ बताने को है, पूरे सेशन, पूरे 20 डेज में जो जो हमने जो हम सीखेंगे, उसमें स्पेशली मैं जरूर फोकस करूंगा कि आपकी प्रैक्टिस को कैसे ग्रो किया जाए। सर सबसे पहले तो आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है, जैसे आपने बताया कि बहुत ही यंग एज से आपने स्टार्ट कर दिया था आयुर्वेद में। ये अपने आप में ही बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, एंड आई एम श्योर सबको पूरे पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू सेक्सोलॉजी। सर सबसे पहले तो ये टर्म अपने आप में ही बहुत हिंड्रेंस क्रिएट करता है, उसके बाद इसमें प्रैक्टिस करना, फिर कई लोगों का डाउट आता है कि हम जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं जनरल प्रैक्टिस, उसमें हमारा पेशेंट फ्लो तो नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हमने सिर्फ इसी टाइप के पेशेंट्स को लिया तो कैसे मैनेज करें, और एक ऑनरेबल तरीके से सेक्सोलॉजी की प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एज अ यंग वेडिसर? यहाँ पे 2 तरीके के लोग आते हैं। एक वो डॉक्टर्स जो अपनी प्रैक्टिस जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके पास तो एक सीधा सीधा मौका है कि डायरेक्ट वो सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिस करें। दूसरा ऑप्शन आपने बोला है कि अगर कोई जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप शिफ्ट हो जाइए। आप क्या करोगे, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे जरूर मेंशन कराओ सेक्सुअल मेडिसिन भी आप प्रोवाइड करवाते हैं। आप खुल के बोलो, चौड़े होकर बोलो। कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो आपसे सच में दवाई लेना चाहते हैं सेक्सुअल मेडिसिन की, लेकिन आपको बताते नहीं है। मेरी जो वाइफ है डॉक्टर मेगा, हम लोग सेपरेट पेशेंट देखते हैं, वो उनकी जो स्पेशलिटी है अलग है, मेरी अलग है। लेकिन हमने ये देखा कि क्रॉस पेशेंट बहुत आते हैं। बहुत बार फॉर एग्जांपल एक फीमेल पेशेंट है, तो वो कई बार रोने लग जाती है कि मैम मेरे हस्बैंड मुझे अभी इतना पसंद नहीं करते हैं। तो उसके पीछे माइट बी द रीजन ऑफ मेल प्रॉब्लम और फीमेल प्रॉब्लम। सेक्सुअल फ्रिजिडिटी इन वुमेन ऑल्सो, और मेल में भी हो सकती है। तो मान लो कोई आईबीएस का पेशेंट आया, तो वो मैम से कंसल्ट करने के बाद बोलते कि मैम मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी शादी हो गई है और मेरी वाइफ ये कहते हैं कि आप देख लो मेरी कुछ शादी टूटने वाली है, मैं क्या करूं। तो वहां, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ बहुत कम टाइम के अंदर कि हाँ ये जो पेशेंट है ये चाहता क्या है। ये कहना नहीं चाहता, बट इसे लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट या रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस ये उसको हो रहे हैं। तो वहां पे पेशेंट फिर दोबारा मुझे भी फीस पे करता है और मैम को भी फीस करके उनका ट्रीटमेंट लेता है। तो जो आपकी जो जनरल प्रैक्टिशनर है या किसी भी स्पेशलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी अपने प्रिस्क्रिप्शन पे जो आपकी स्पेशलिटी अगर मेंशन करते हैं, उस पे बस एक छोटा सा शब्द लिख दो, सेक्सुअल मेडिसिन, बस। इसके बाद में पेशेंट आज तो आपका हो सकता है डायबिटीज का ट्रीटमेंट कराने आए, कल कोई हेयरफॉल का कराने आए, लेकिन उसे शर्माने में या उसको बताने में कोई शर्म नहीं आई कि मैम मुझे कुछ और भी प्रॉब्लम है। तो आप खुद सीधे बोलो, यस सर मुझे कुछ और भी प्रॉब्लम है। आपका कुछ रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं क्या, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है क्या, आपको प्रीमेच्योर या टाइमिंग का इशू है, तो आप बोलो तो खुद ही वो कंफर्टेबल, अच्छा हाँ सर यही हो रहा है। तो वहां पे वो तुरंत ही आपके लिए एक, कह सकते हैं एक बिजनेस का भी एक जरिया हो गया वहां पे, एक आपको कमर्शियल भी एक्स्ट्रा मिल जाता है और आपका काम चल जाता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। और आज के टाइम पे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है और बहुत सारे केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो मेरे दो सवाल है, एक तो क्या ये सिर्फ एक मेंटल इशू है या इसमें फिजिकल रीजंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और क्या हम आयुर्वेद से इसको कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं? दो हैं इसमें चीजें। अगर किसी को जस्ट स्टार्टिंग, जैसे वो अपने सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करते हैं और तभी से उनको प्री मेच्योर इजैकुलेशन रहता है और लाइफ लॉन्ग 5 ईयर 5 6 ईयर 10 ईयर से है, तो वो उनका
लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, उसमें जनरली न्यूरोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो अलग केस हो गया। दूसरा नंबर पे आते हैं हमारे एक्वायर्ड वाले। आज के टाइम पे 95% पेशेंट जो मैं देखता हूँ वो एक्वायर्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन के होते हैं। उनमें हमें समझने की एज ए डॉक्टर जरूरत होती है कि क्या इश्यूज हैं, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी को बांटने के रिलेटेड चल रहे हैं, कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, या फिर उनका करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या उनका ऑफिस में कुछ डिस्टरबेंस चल रही है, या कुछ रिलेशन उनका खराब चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यानी कि सेकंड वाला प्रॉब्लम है, जिसको एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलेंगे, वो ज्यादा आसानी से क्योर करना, उसको क्योर करना बहुत इजी है, क्योंकि आपको रूट को सामने दिख जाता है, और 95% पेशेंट आपके इसी के आते हैं। एक चीज आपने बोली, एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या आयुर्वेद से ये ठीक हो सकते हैं, एम आई राइट? जी सर। देखो, आयुर्वेदा तो इसका है ही सबसे महान ग्रंथ, जिसमें सब कुछ बताया गया है। वाजिकारक चिकित्सा, रसायन चिकित्सा कितने सालों से लिखी गई है। मतलब उस टाइम पे शायद ये ग्रीडी लोगों के लिए बनाया गया होगा, कि उस टाइम पे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या ईडी या लो लिबिडो लोगों को नहीं होता होगा, लेकिन अभी उनको ये चीज पता थी। हमारे आचार्यों के आगे आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, तो वही चीज उन्होंने देखो क्यों कैसे मेंशन कर दी, और हम चीजें देख भी रहे हैं। तो वो सेम चीज 5,000 साल पहले उन्होंने जब लिखी हुई है, इसका मतलब कुछ तो उन्हें पता चला होगा कि आने वाले टाइम पे इतनी सारी प्रॉब्लम होने वाली, तो आपको ईडीपीएमई भी होने वाला है। तो इस पे उन्होंने स्पेशली लिखे हुए चैप्टर्स लिखे हुए हैं। आयुर्वेदा से आसानी से क्योर होता है, बट ध्यान देने वाली बात यह है, सेक्सुअल मेडिसिन में सिर्फ दवाई से ज्यादा आपकी पेशेंट की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर उसके ऑफिस का स्ट्रेस कम नहीं होगा, उसकी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, उनका घर में चीजें ठीक नहीं होंगी, तो आप उनको समझाओ। हमारे पास तो नित्य रसायन है, अगर साइकोलॉजिकल पीई या पीएमई आपको दिखता है तो वहां से हम क्योर कर सकते हैं। पहले स्टेप तो यही हो गया। दूसरा, हम शिरोधारा या किस और भी द्रव्य देके ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में स्तंभन कर मेडिसिन या स्तंभन कर द्रव्य जो आते हैं, वहां से क्योर कर सकते हैं। मैं बताऊं कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कि आप मुझे कितना भी पैसा ले लो, मेरी दवाइयां बंद मत करना जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, क्योंकि मैं 20 साल के बाद में इतना खुश हूं। मैं ये 50-55 साल वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। अभी कल का एक केस बताऊं, आई थिंक 55 के आसपास में एज है उनकी, और उनकी वाइफ आईएएस की तैयारी कर रहे थे। 5 महीने या 6 महीने पहले से मेरे पास से ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उनको प्री मेच्योर इजैकुलेशन बहुत पहले से था। तो पिछले 3 साल से बता रहे, मेरा और मेरे वाइफ का रिलेशन इतने खराब हो गए हैं कि दोनों अलग अलग बेडरूम में सोते हैं। जब वाइफ से बात करते हैं कि हमसे कुछ बात करो, तो वो चिढ़ जाती हैं। वो कहते हैं मुझे अपने करियर पे ध्यान देने दो। सेकेंड वाइफ है उनकी ये, तो करियर पे ध्यान देने दो। तो मैंने जब सारी चीजें उनसे पता करी, तो उन्होंने बताया कि सर हुआ ऐसा था, वो सेकंड कंसल्टेशन में बताया कि मुझे प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम थी। तो वाइफ ने मुझे सीधे बोला कि मुझे नहीं लगता कि हमें रिलेशन के लिए जाना चाहिए आगे, जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको है। तो फाइनली वो कल पेशेंट आया था, ही इज वेरी हैप्पी। 3rd मंथ से आई थिंक रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। पीएमई और ईडी दोनों ठीक होते हैं, क्योंकि आपने उसका रूट कॉज जाना। और जो वाइफ के लिए मैंने उनको रिकमेंड किया था, या तो उनको बोलो मुझे दिखाए, या फिर वो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। तो उन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट को चूज किया, वहां से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो वो भी थोड़ा ठीक हो गई हैं साइकोलॉजिकली। तो वो उनको आप सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के चाहिए ये होता है ऐसे पेशेंट को, कि आपको रूट कॉज जानने की जरूरत होती है। दवाइयां अगर आप पेशेंट को तारीफ करके अपनी मेडिसिन का, या उनको ये आश्वासन दे के, ये एश्योरेंस दे के बोलोगे कि आप 100% ठीक हो जाओ, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बस फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना, ही बोलो ये चीज ठीक करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो आप ठीक हो गए, तो ठीक होते हैं। और सबसे एक अच्छी बात बताता हूँ, सेक्सुअल मेडिसिन में कोई भी पेशेंट आपको गलत रिव्यू नहीं देता, अनटिल और अनलेस आप उनको लूटो मत। जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स,
वो बैठे हुए हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, नाम आयुर्वेद का लगाते हैं, 50,000, 60,000, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा चार्ज कर रहे हैं पर मंथ। अब वहां से ठीक तो देखो होगा नहीं, क्योंकि आप आयुर्वेद का आपको कुछ आता नहीं है, आप आयुर्वेद को चीट कर रहे हो, पेशेंट को चीट कर रहे हो, तो फिर वो तो गालियां किसी को भी पड़ेंगी। अदरवाइज मुझे लगता है ये फील्ड में कि आपको रिव्यूज नेगेटिव नहीं मिलते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। नहीं भी ठीक वगैरह सर ठीक है, कोई बात नहीं। सर आपने कहा काउंसलिंग का रोल होता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि काउंसलिंग का कितना परसेंट रोल होता है जब कोई सेक्सोलॉजी पे कंसल्टेशन दे रहा है सर, मेडिसिन इसमें से? दो चीज मैं कहता हूँ कि 40% से ज्यादा काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है पेशेंट का, उसका आहार विहार ये भी चेंज करने की जरूरत होती है। और काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको नई चीजें सुधारने के लिए बोलोगे, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफ स्टाइल ठीक करके ही सही होगा। और आयुर्वेदा में तो सीधे हमेशा ही बोला गया है कि आपका जो निदान परिवर्जन है वो करना ही चाहिए, आहार का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, आपका दिनचर्या पे बहुत महत्व दिया गया है। तो आयुर्वेद हम तो वही चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो कुल मिला के होगा कि पेशेंट को कंसिस्टेंट आपको रखना है, उनको चाहिए कि प्रॉब्लम सच में परमानेंट ठीक हो, तो उनको आपको आहार विहार और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के पेशेंट को ये एश्योरेंस देना जरूरी है कि आप ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके अंदर दिख नहीं रही है। लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है, उससे रिलेटेड टेस्ट कराना जरूरी है, उससे रिलेटेड सही दवाई देना जरूरी है। सर क्या लो लिबिडो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, क्या ये एक ही प्रॉब्लम है या फिर ये अलग अलग है और इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम अलग है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम अलग कहना ये हम नहीं कह सकते, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बोला लो लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, करेक्ट? जी तो सर। आप ऐसे समझो कि लो लिबिडो मीन्स होता है कि आपको डिजायर्स नहीं है। डिजायर के पीछे बहुत सारे जनरली डिजीज के कॉजेस रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको अब करियर का स्ट्रेस रहता है, या ओवर मास्टरबेशन, जो यंगस्टर्स हैं अंडर 35 ईयर हैं, तो उनको हमेशा एक ओवर मास्टरबेशन की हिस्ट्री मिलती है लो लिबिडो के केस में। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, ब्लड वेसल स्टिफ हो जाती है, खून का बहाव अच्छा नहीं है, तब उनको लो लिबिडो होता है। या कोई ड्रग एडिक्टेड पेशेंट है, अल्कोहल, स्मोकिंग, चरस, गांजा, अफीम ये ज्यादा लेते हैं, उनको लो लिबिडो ज्यादा देखने को मिलता है। ये अपनी जिंदगी में ज्यादा परेशान है उनको। तो लो लिबिडो को हार्मोनल करेक्शन, आपका अगर नींद अच्छी नहीं आती वो करेक्शन, आहार विहार से उसका करेक्शन ये करोगे तो फिर वो ठीक होता है। इसके बाद में इरेक्शन के लिए आपको चाहे कुछ भी रूट कोज होने दो, अल्टीमेट होना क्या है, पेनाइल एरिया में ब्लड फ्लो आना चाहिए। यानी कि ब्लड, जो आपका खून का बहाव है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो होना जरूरी है। दूसरा, नर्व का कंडक्शन होना जरूरी है। तीसरा, डिजायर होना जरूरी है, जो लो लिबिडो की आपने बात की थी। तो सबसे पहले लो लिबिडो की ओर करेंगे। जैसे एक गाड़ी है मान लो, तो गाड़ी में होना क्या चाहिए, जब गाड़ी स्टार्ट होगी या चलेगी रोड पे, तो उसके लिए एक तो उसमें पेट्रोल होना जरूरी है। दूसरा, गाड़ी में वायरिंग होना भी जरूरी है, आप धक्का देके तो जाओगे नहीं, तो बैलगाड़ी हो गई। तीसरे नंबर पे इग्निशन यानी कि इंजन भी होना उसका जरूरी है। तो कुल मिला के इरेक्शन के लिए तीन चीजें चाहिए, यानी कि आपको हॉर्मोन्स, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन, सीरोटोनिन, इन सब का बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। साथ में ब्लड फ्लो होना इंपॉर्टेंट है, और तीसरे नंबर पे आपका नर्व कंडक्शन होना इंपॉर्टेंट है, तभी इरेक्शन अच्छे आते हैं। जितने भी लोग क्वेश्चंस भेज रहे हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ मिनट डेडिकेटेड रहेंगे फॉर क्वेश्चन आंसर, तो यू गाइस कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट होने के बावजूद भी एक मेल को इनफर्टिलिटी इश्यूज या सेक्सुअल इश्यूज हो सकते हैं? कि अगर रिपोर्ट जैसे अगर नॉर्मल भी है तब भी हम बोल सकते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मतलब रिपोर्ट का कितना परसेंट रोल है सर इन रिपोर्ट, डायग्नोसिस? जब देखो ऐसा है, इसमें दो चीजें आती हैं। पहला, जो रिपोर्ट की बात करूं मैं, तो रिपोर्ट्स ज्यादातर पेशेंट की ठीक ही होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट, हम कह सकते हैं कि मोर देन 50% पेशेंट की रिपोर्ट्स ठीक होती है। जैसे साइकोलॉजिकल कंडीशन है तो उसमें क्या रिपोर्ट में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आईबीएस है तो जनरली कुछ भी नहीं आएगा। बहुत ज्यादा लोगों में क्या रहता है, D3 B12 की कमी रहेगी, तो D3 B12 भी आपका टेस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर आपका नर्व कंडक्शन में हेल्प करेगा B12, तो वो दिखता है। अदरवाइज अगर आपका वो इनफर्टाइल है, सॉरी वो फर्टाइल हैं, उनके बेबी हैं, सब कुछ है, तो उसका कोई लेना देना है नहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो लिबिडो में, यानी कि सेक्सुअल प्रॉब्लम में।
एंड फीमेल सेक्सुअल फ्रिजिडिटी से ये क्या होता है और इसे कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? डायग्नोसिस ही है सेक्सुअल फ्रेजिडिटी इन फीमेल। तो उसके पीछे ये देखना होता है कॉजेस क्या है। हम ज्यादातर पेशेंट को ये देखते हैं, अगर उनको कोई हार्मोनल प्रोफाइल खराब है, मेंसेस ठीक नहीं है, और कई सारे केसेस में ज्यादातर यही मिलता है कि घर में वो अपनी फैमिली से, अपने परिवार से खुश नहीं है, वो चिड़चिड़ी हो चुकी हैं। मानसिक कारण हमें 60 से 70% पेशेंट में, फीमेल में देखने को मिलता है। और अदरवाइज कोई अंडरलाइन डिजीज है, स्पेशली आपका कोलाइटिस में, आईबीएस में, या फिर उनको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, वहां देखने को मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रॉब्लम पता करो, फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली आ क्यों रहा है। या कई सारी वुमेन होती हैं, हमारे पास ऐसे भी केसेस रहते हैं कि वो, उनको डिजायर कम रहती है हमेशा से, ऐसा नहीं कोई डिजीज हुई है तब से, हमेशा से रहते। उसके पीछे ये भी देखने को मिलता है, कई सारी फीमेल ऐसी होती है कि वो कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शादी होगी मतलब बच्चे हो गए तो इसके बाद में जिंदगी खत्म। तो ये भी चीज कई सारे पेशेंट को हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये बहुत हजारों में एक पेशेंट को ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। एंड सर, क्या मैरिड लाइफ में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिर्फ मेडिसिन से ठीक की जा सकती हैं, या मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग भी करनी है? तो किस तरीके से पेशेंट को हैंडल किया जाता है और किस तरीके से काउंसलिंग करें और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए सर ऐसे केसेस देखो, मेडिसिन तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपका जो एज ए वैद्य, दवाई अगर पेशेंट को नहीं दोगे तो वो कहेगा कि मुझे तो कुछ डॉक्टर ने दिया ही नहीं, वो कल ही जाएगा दूसरे डॉक्टर को दिखा लेगा। उसको इसमें प्लेसिबो इफेक्ट भी बहुत बार आता है कि डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी मेडिसिन दी है और मैं खा के ठीक हो जाऊंगा, तो उसकी वजह से हमें रिजल्ट थोड़े देखने को मिलते हैं। दूसरा, काउंसलिंग कैसे की जाए। काउंसलिंग का तरीका सबसे बढ़िया यही है, आप पेशेंट को अपने केबिन में बुलाओ, उसको थोड़ा कंफर्ट जोन में लेके आओ, उनकी हिस्ट्री अभी से लेके और आखिरी तक जहां जहां प्रॉब्लम रहती है वहां तक बताओ। जैसे मैं एक पेशेंट की बात करूं, तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम थी, और उनको ट्यूबरकुलोसिस बाद में हमें पता चला कि टीबी भी है। बहुत दिनों बाद बताया, सर मैं ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन ले रहा हूँ, इनकी क्षय बीमारी वैसे ही है, शुक्र धातु तो बची नहीं शरीर में। जब उन्होंने बोला, मैंने उनका हाथ पकड़ा, देखा वो गर्म था, मैंने, तुम्हें बुखार है कि नहीं सर मैं कुछ मेडिसिन ले रहा हूँ, किस चीज की, ट्यूबरकुलोसिस की, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। तो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। और इसमें सिर्फ कंप्लीट हिस्ट्री आपकी डिजीज से रिलेटेड नहीं है, आपको उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा घुसने की जरूरत है। क्योंकि बहुत बार ऐसे हिडन केसेस आ जाते हैं कि अभी कल का मैं एक पेशेंट का केस बताऊं। उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसलिए था क्योंकि उनको 10 साल से अपनी वाइफ से बात नहीं चल, सॉरी 10 महीने से अपनी वाइफ से बातचीत नहीं हो रही है। रीजन बीइंग, उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ लिया उनकी वाइफ ने, इसकी वजह से। और ये मुझे बता रहे दूसरी कंसल्टेशन में, बहुत फेमस इंसान है आपके, आई थिंक महाराष्ट्र में किसी जगह से हैं, वो सिंगर है। तो कुल मिला के है ये कि आपको इस बीमारी का रूट कोज क्या, उसके गहराई तक जाने की जरूरत है, यानी कि पेशेंट को थोड़ा अंदर तक जाने, पूछने की जरूरत है, डीप में पूछने की जरूरत है, उसका दोस्त बनने की जरूरत है। आप उसमें चार्ज कुछ भी करोगे तो पेशेंट उसको चार्ज पे करने के लिए रेडी रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो आपके ट्रीटमेंट से, आपकी बातों से। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, वो सिर्फ सिंपल से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिर आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लिए, और दे आर चार्जिंग 15,000 फॉर 30 मिनट इन दिल्ली। तो ऐसे भी लोग बहुत हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका पोटेंशियल कितना है। राइट सर? सर, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले किन स्किल्स की सबसे ज्यादा नीड होती है? सबसे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। जैसे आपके पास पेशेंट आता है, आप उनको सवालों के जवाब नहीं दे पाते या फिर उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते हो, तो वो पेशेंट क्या करेगा, पर्चा आपसे बनवा लेगा, बाहर जाके कहेगा मैं बाद में आता हूँ, अभी मेरे पास कैश नहीं है, या फिर मैं मेडिसिन कल लेने आऊंगा, ऐसे ऐसे बहाना मार के किसी और को दिखा लेगा। तो सबसे पहले यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होने के साथ में आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसका ज्ञान होना जरूरी है। और ज्ञान होना सिर्फ आयुर्वेद का ही नहीं, आयुर्वेद के साथ साथ में आपको कुछ मॉडर्न का भी ज्ञान होना जरूरी है, आपके रिपोर्ट्स को पढ़ना आना जरूरी है।
ताकि आप उनको बता पाए। कई बार होता क्या है कि हमारे पास कह सकते हैं मोर देन 20% पेशेंट ऐसे आते हैं जो किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो उसका भी साथ में ज्ञान होना जरूरी है। साथ में आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका क्लिनिक साफ सुथरा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप क्लिनिक पे आ गया पेशेंट और आपने उन्हीं का पर्चा खुद बनाया, इसके बाद में दवाइयां भी खुद निकाल के दे दी, तो वहां पेशेंट आपको जज करता है। स्पेशली टीयर 1 टीयर 2 सिटी में, टीयर 3 और 4 में तो ये सब चल जाता है, लेकिन टीयर 1 2 सिटीज में हमेशा लोगों को सर्विसेज चाहिए होती है, तो एक थोड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। Right. और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोला, जो शास्त्र का ज्ञान है वो बहुत जरूरी होना चाहिए। और क्या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन आज के समय में आयुर्वेद की सबसे ग्रोइंग फील्ड या सबसे ग्रोइंग स्पेशलिटी बन सकती है, या कोई एक यंग वैद्य है जो सिर्फ सेक्सुअलॉजी में प्रैक्टिस करना चाहता है, तो सर उसका क्या स्कोप है और वो कितना फाइनेंशियली और उसका कितना प्रतिष्ठा हो सकती है सर इस फील्ड में? बियॉन्ड द लिमिट, आप जहां तक सोच सकते वहां सोच लीजिए। मैं आपको बता दूं कि अकेले जो शिलाजितु है, शिलाजीत, जो अडल्ट्रेटेड मार्केट में मिलती है, हजारों करोड़ की मार्केट है, 10,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट शिलाजीत की है वर्ल्ड वाइड। सिंगल वायग्रा की जितनी मेडिसिन बिकती है और सिंगल जितनी भी सेक्सुअल मेडिसिन बिकती हैं, उससे ज्यादा शायद ही किसी बिजनेस में पैसा होगा। दो रीजन है। पहला एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, आप जब एलोपैथिक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है, आप प्रॉपर हिस्ट्री लेना। जो मैं कह सकता हूँ कि जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते लोग, जिनके पास इंश्योरेंस है, वो तो जरा सी प्रॉब्लम हुई तो तुरंत ही वो डॉक्टर को दिखा लेंगे। कॉर्पोरेट वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका इंश्योरेंस है। बाकी लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब वो मरने वाले होते हैं, जब उनको सीरियस प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें लगता है कि अब काम नहीं चलेगा, अस्पताल जाना ही पड़ेगा। भले ही उनके पास पैसा ना हो, वो जमीन बेच के, घर बेच के, कहीं से अरेंज करके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं इमरजेंसी में। क्यों? क्योंकि उनके पास अब लास्ट ऑप्शन है ये, और वो पैसा भी देते हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, इमरजेंसी है। सेम प्रॉब्लम, सेम जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के साथ, सॉरी सेक्सुअल मेडिसिन के साथ में अप्लाई होता है। पेशेंट अपने कपड़े नहीं खरीदेगा, पेशेंट अपने लिए शौक पूरे नहीं करेगा, हो सकता है वो अपनी 1 2 ट्रिप कैंसिल कर दे, लेकिन आपको पैसा देगा। तो सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि इसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं है, देर इज नो लिमिट। अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर अपने एरिया के बन जाते हो, तो आप हर दिन का उतना मैं अभी का बता दूं, मैं जब प्रैक्टिस करना मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, तो जो मेरा पुराना क्लिनिक था वहां पे हम लोग जनरल प्रैक्टिस करते थे। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ, हमारे पास एक पेशेंट चल रहे थे ट्रीटमेंट के, आई थिंक 40 42 ईयर एज उनकी होगी। सब कुछ ठीक चल रहा है, 4 5 6 फॉलोअप भी हो गए, सब सही चल रहा है। तो बाद में वो उठ ही नहीं रहे केबिन से। सर एक बात पूछूं? मैंने क्या? बताओ। कि सर बुरा मत माना, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कौन सा तुम्हारा बुरा मानूंगा, तुम्हारी सास तो हूं नहीं मैं जो बुरा मानूंगा। तो सर कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हें रिपोर्ट्स में भी दिख रहा है, तुम्हें खुद फील हो रहा है। नहीं नहीं सर, ठीक नहीं चल रहा है। मैंने बताओ क्या हुआ? फिर वो पेशेंट उदास हो गया, बोला कि सर हम लोग सेपरेट होने वाले हैं 3 4 महीने के अंदर ही। मैंने क्या हुआ? तो फिर उसने सारी स्टोरी बताई। देन आई स्टार्टेड डूइंग सेक्सुअल, देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल मेडिसिन। तो जब उस पेशेंट की मैंने देखा ये कितना खुश है, मेरी जो ट्रीटमेंट कर रहा था, इतनी बड़ी बीमारी थी, इतने सालों से बीमारी थी, उसको ठीक करने के बाद में इतना खुश नहीं हुआ जितना ये इससे हो रहा है। और इसमें बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट अपने पिताजी जो उनके ट्रीटमेंट कराते हैं, तो फिर अब बेटे को भी रेफर करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ओपन हो गया सब कुछ, और लोग शेयर कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स से भी शेयर करते हैं। कई बार सिस्टर्स जो होती हैं, उन्हें पता चलता है कि मेरे भाई को ऐसे है, मेरे पास एक लखनऊ का केस, कि भाई को ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनका सेपरेशन होने वाला है, डिवोर्स होने वाला है, तो वो इलाज करवाते हैं। सिस्टर बोलती भाई मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो इस फील्ड में जो स्कोप है, ये दिन पे दिन एक तो बढ़ रहा है और बढ़ेगा। रीजन बिंग महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स कम है, स्ट्रेस ज्यादा है। आज इसको गाड़ी चाहिए, पड़ोसी वाले ने दूसरी बड़ी गाड़ी लेके आया, तो ये वाली बेच के दूसरा भी लेके आएगा, लेकिन अगले महीने की ईएमआई की स्ट्रेस आएगी, उससे सेक्सुअल डिसऑर्डर होंगे, वो फिर आपके पास आएगा। तो एक तरीका नहीं है, मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड।
सब जगह बढ़ रहा है। और सर कोई एक नया वैद्य अगर इससे इसी फील्ड में प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और अगर उसको चैलेंजेस हो रहे हैं तो उसको कैसे कॉन्कर करे और इसी प्रैक्टिस में जनरल मेडिसिन से शिफ्ट होकर इसी प्रैक्टिस को फोकस कर सके? देखो, अगर आप सिर्फ सेक्सुअल मेडिसिन स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे पहले बड़े प्यार से विदाउट एनी हेजिटेशन अपना बोर्ड लगाओ, अपनी डिग्री लिखो वहां पे और लिखो सेक्स मेंस हेल्थ एक्सपर्ट या रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सपर्ट। पर्चे पे ईडी, पीएमई, लो लिबिडो ये सब लिखो, क्योंकि ये सारे शब्द आज के जमाने में सबको आते हैं। मैं कह सकता हूँ कि 99% पेशेंट को पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, और 1-2% कुछ रह भी जाते हैं जिनको ये शब्द नहीं पता, वो आपके पेशेंट नहीं है, ऐसे मान के चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर विजन होना चाहिए कि आई एम प्रैक्टिशनर ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन, पहली चीज। और बोर्ड पे भी लिखाना ही जरूरी है। चैलेंज की बात ये करूं तो सबसे जरूरी चीज ये आता है कि पेशेंट को रिजल्ट मिलने चाहिए। अगर आपने फर्स्ट कंसल्टेशन में उनको ये एश्योर कर दिया कि मैं इस डॉक्टर से ठीक हो जाऊंगा, तो पेशेंट डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, नहीं तो वो कभी नहीं आएगा। और इसमें पेशेंट चोरी छुपे और रेफर करते हैं। जैसे अ, जैसे मैं पेशेंट हूँ, मैं ठीक हो गया अगर किसी से, तो मैं किस दोस्त को बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ट्रीटमेंट इनसे लिया, मैं बोलूंगा अरे मैंने नाम सुना डॉक्टर बहुत बढ़िया, आप चले जाओ वहां पे। तो ऐसा भी बहुत होता है। तो चैलेंज में एक तो आपका जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, अगला पेशेंट समझ जाएगा। क्यों समझ जाएगा? उसके पीछे रीजन है कि वो कम से कम आपसे पहले कई सारे डॉक्टर्स को एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सबको दिखा के आ चुका होगा। ज्यादातर पेशेंट आपके पास फेलियर ही आएंगे। शायद ही 100 में से 2-3 पेशेंट होते हैं जो कहते हैं मैंने आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं ली। उनके पास तरह तरीके का ज्ञान होता है गूगल से, आप उनके पास ज्ञान होगा आपका यूट्यूब से। उनको यहाँ तक कि पेशेंट ये भी बोलते हैं सर मुझे पित्त बढ़ गया है, सर मुझे वातज व्याधि ज्यादा हो गई है, तो आप मुझे किसकी दवा दे रहे हो? तो उनको इसका मतलब ये है कि दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स या नॉलेज जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है, आपका ज्ञान पूरा होना चाहिए। और नहीं भी है तो उसको आप कैसे टैकल करोगे वो आपको आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सर डायग्नोसिस में जैसे ईडी का डायग्नोसिस है या पीएमई का, इनफर्टिलिटी, इसमें कौन से इन्वेस्टिगेशंस का क्या रोल है और कौन से इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है? और क्या बिना इन्वेस्टिगेशन के ट्रीटमेंट किया जा सकता है? आपको हिस्ट्री लेने के बाद पता चलेगा कि पेशेंट को एक्चुअली कौन से टेस्ट करवाने चाहिए या टेस्ट नहीं करवाने चाहिए। आज के टाइम पे मैं ये देखता हूँ कि D3 B12 की कमी सब में रहती है, जिसकी वजह से उनको वीकनेस रहती है। आप भले ही आयुर्वेद की कोई भी दवाई दे देंगे लेकिन पेशेंट खुश रहेगा। B12 का उनको समझा दोगे, आप यहाँ से ये न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन ही लेना शुरू कर दोगे। ऐसा उनको बोलोगे सपोजिटरी मेडिसिन हैं, एड ऑन मेडिसिन हैं, लेकिन आपको इनकी जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। पेशेंट ठीक हो रहा होगा इन दो कंडीशन की, दो प्रॉब्लम की वजह से, दो डेफिशिएंसी की वजह से। D3 B12 आपको क्रेडिट देगा कि आपने आयुर्वेदिक दवा दी उससे ठीक हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, ये यानी कि टेस्ट उनको करवाना जरूरी ही है। इसके बाद में कि कुछ पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, वो पता चल जाता है उनकी हिस्ट्री से कि मुझे डिजायर्स बिल्कुल नहीं आ रहे, एज अभी उसकी 25 ईयर है और इरेक्शन, मॉर्निंग इरेक्शन भी गायब है, तो वहां पे आपको टेस्टोस्टेरोन फ्री कराने की सबसे पहले जरूरत है, टेस्टोस्टेरोन टोटल कराने की भी जरूरत है। देन आपका जो कुछ हार्मोनल प्रोफाइल होती है जिसमें आपका LH, FSH, प्रोलैक्टिन, एस्ट्राडियोल और SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये आपको कराने की जरूरत है। इसके बाद में अगर कोई जिसकी एज ज्यादा है, किसी को कुछ इंजरी के केसेस हैं, डायबिटीज है, मेडिसिन लेने के बाद भी यानी कि जो सिंडेलाफिल, टडालाफिल या ऐसी मेडिसिन लेने के बावजूद भी उनको फॉर्म इरेक्शन नहीं आता है, तो हमें जानने की जरूरत है पेनाइल डॉपलर से। तो वो कराने की जरूरत पड़ती है कई सारे, लेकिन बहुत कम, ये 100 में से एक आध पेशेंट को जरूरत पड़ती है। लेकिन जो एलोपैथिक वैद्य डॉक्टर्स होते हैं उनकी पैसा कमाने का ये जरिया होता है, इसलिए वो सबका करवाते हैं। कह सकते हैं हर किसी को लिखते हैं मेरे पेशेंट कराए ना कराए, तो वो हमारा फील्ड नहीं है। अगर आप कराते हो तो आपको कमीशन मिलता है, नो डाउट। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट है। इसके बाद में कोई बीमारी उससे रिलेटेड, किसी को डायबिटीज है तो आप उसमें कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएंगे, उनको HbA1c करवाएंगे, उनका शुगर चेक करेंगे, उनका BP का पूछेंगे हिस्ट्री,
कई बार पेशेंट को साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से वो लोग एसएसआरआई लेके आ जाते हैं, जो सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। उसको जनरली तो अगर किसी को पीएमई है तो उसमें हेल्प करते हैं, सीरोटोनिन को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन अगर आप उसका हाई डोज इसके लिए ले रहे हो तो फिर बाद में चल के ईडीपीएमई आपको होता है। तो ये सब जानने की जरूरत है। टेस्ट में बेसिकली जनरली यही टेस्ट होते हैं जिनकी कराने की जरूरत होती है। और मैं तो ये कहूंगा आपको करवाना चाहिए, एक लैब से आपको टाई अप करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे पेशेंट है, जो इलीट क्लास है, वो यही चाहती है कि डॉक्टर मेरी डायग्नोसिस करके ही दवा दे, और आप प्यार से बोलो, क्योंकि इसमें दो फायदे हैं। एक तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास चार पैसे भी एक्स्ट्रा आएंगे। तो अगर चार पैसे एक्स्ट्रा है तो बुराई क्या लेने में, 40-50% कमीशन सब जगह मिलता है। तो पेशेंट को मैं तो कहूंगा 2-3 टेस्ट करवाने ही चाहिए, ताकि उसको भी लगे कि हाँ मेरे अंदर ये कमी थी, अब ये ठीक हो गई है। तो रिपोर्ट्स दिखाना जरूरी है, रिपोर्ट कंपेयर करना जरूरी होता है। मैं इसके इस टेस्ट से रिलेटेड एक आपको केस और बताता हूँ। दिल्ली सदर बाजार में काम करने वाला लड़का है, ही इज आई थिंक 29 और 30 ईयर ओल्ड। मैंने फर्स्ट मंथ पे उनको ट्रीटमेंट दिया। वो लगता है कम से कम 10 जगह डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके आ गए, लेकिन वो पेशेंट थोड़ा सेक्सुअल ओसीडी का था। तो उसकी वजह से ओसीडी प्लस सेक्सुअल ओसीडी उनको था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने फर्स्ट टाइम तो कोई टेस्ट नहीं कराया, सिंपली मेडिसिन लेके भेज दी। फिर वो उसने मुझे फोन किया कि सर आपको पक्का पता चल गई मेरी बीमारी क्या है। तो 2-3 बार में मुझे पता चला कि इसको ओसीडी है। तो फिर इसके बाद में कुछ और टेस्ट कराए तो पता चला उनका जो एसएसबीजी है वो बहुत डाउन था, और उनका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ था, इसलिए डिजायर नहीं आ रही थी। हमने सिंपल सिंपल मेडिसिन से आयुर्वेद में 2-3 मेडिसिन स्टार्ट किए, तो 1 महीने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। हालांकि पेशेंट फिर भी ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको सेक्सुअल ओसीडी थी। तो फिर उनको हमने कंपेयर करके दिखाया, उसने बोला सर मेरा पैसा तो बर्बाद गया है। तो कई बार पेशेंट अलग अलग तरीके कहता है ना, कोई गुस्सेबाज है, कुछ भी बोलेगा, स्टाफ को कुछ बोलेगा, तो वहां आपको समझाना जरूरी होता है। तो जब हमने रिपोर्ट करवाई है, और अगली रिपोर्ट को हम जब कंपेयर कर सकते हैं, देखो तुम्हारी ये रिपोर्ट पहले ऐसी थी, ये वैल्यू अब इतनी है जो नॉर्मल रेंज में आ गई है, इसके मतलब मेरी दवा काम की है। तो ऐसे समझाना जरूरी हो जाता है अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो, बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट का। और सर आपने कहा बहुत सारी और डिजीजेस को मोर्बिडिटीज का भी इफेक्ट होता है सेक्सुअल वेलनेस में या सेक्सुअल हेल्थ में। तो अगर कोई सिर्फ सेक्सुअल वेलनेस या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही प्रैक्टिस कर रहा है तो बाकी डिजीज भी मैनेज्ड रहे, तो उसके लिए फिर या तो उसको क्या बेस्ट है, या तो रेफर करना चाहिए किसी और डॉक्टर को। एग्जाम्पल डायबिटीज है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसके सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ रहा है, तो रेफर करना चाहिए, या एक वैद्य को जनरल प्रैक्टिस का भी नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड में स्टार्ट करने से पहले से। देखो वैसे तो हर फील्ड में होना चाहिए। अगर आप मान लो जॉइंट डिसऑर्डर देख रहे हैं, तो गैस की दवा देनी तो आती है सबको, है ना। कॉन्स्टिपेशन है तो सबको आनी चाहिए, माइग्रेन है तो उसको टैकल करना आनी चाहिए। तो कुल मिला के सिर्फ सेक्सुअल मेडिसिन का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसके साथ में पेशेंट की जो जो प्रॉब्लम है उसका भी एक आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बीमारी जो जो उनकी सेकेंडरी बीमारी लेके आया है वो प्राइमरी है, और मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूँ, तो आप सीधे सीधे आप किसी भी वैद्य का जो इस फील्ड के हैं उनको रेफर कर देना चाहिए। बिलीव मी, मैं कम से कम 5 से 6 पेशेंट को हर दिन, महाराष्ट्र वाले जो पेशेंट हैं, ज्यादातर मैं एक्चुअली महाराष्ट्र साइड में मैं उनको रेफर करता हूँ कि यहाँ पे ये वाले वैद्य हैं, ये अच्छे हैं ना। मैं उनको जानता हूँ, मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ अपने आप को, सॉरी उन डॉक्टर्स को, लेकिन वो मुझे नहीं जानते, फिर भी मैं रेफर करता हूँ कि वो डॉक्टर ज्यादा अच्छे हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट का जो आपका ट्रस्ट है वो बढ़ता है कि देखो डॉक्टर कितने अच्छे हैं। और आप बोल दो कि मैं इस बीमारी का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, वो वाले डॉक्टर आप हमारी नजर में लगता अच्छे हैं तो आप उनके पास चले जाओ। अगर आपका कहीं से रेफरल सिस्टम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे भेज दो पेशेंट के फायदे के लिए। इससे ये नहीं होगा कि पेशेंट आपका उनके पास चला जाएगा, जनरली ऐसा नहीं देखा मैंने अपनी प्रैक्टिस में। लेकिन पेशेंट जरूर खुश हो जाता है कि नहीं, अगली बार अगर किसी और को भी प्रॉब्लम होगी तो मैं इन्हीं डॉक्टर को भेजूंगा। तो इसके साथ में दूसरा ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। इवन मैं आपके जो प्राणाविसार वैद्य आपका प्लेटफॉर्म है, मैं 4 से आई थिंक 5 कोर्सेस मैंने खुद एनरोल किए हैं। हर दिन मैं सीखता हूँ, 2 घंटे आपकी क्लास हमेशा लेता हूँ, चाहे वो 45 डिजीज हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो।
तो वो मैंने खुद लिए। डायबिटीज का सर का बहुत अच्छा सेशन था, वो मैंने ज्वाइन किया था। अभी जो आपका लीगल वाला था वो मैंने ज्वाइन किया है। तो कुल मिला के कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। स्पेशलिटी आपकी यहाँ पे है, लेकिन वो अलग बात है अगर मान लो कोई पेशेंट पंचकर्मा के लिए मुझे रेफर करना है और वो पेशेंट कहीं से बैंगलोर से है और मैं उसको बोलूं पंचकर्मा यहाँ कराने हो, तो ये मुझे लगता है मेरी बेवकूफी है और पेशेंट का नुकसान है। तो अगर मुझे लगता है कोई पेशेंट वहां करा सकता है तो मैं चाहता हूँ कि किसी वैद्य के पास चला जाए, तो मैं रेफर कर देता हूँ कि आप वहां चले जाइए, वहां से करा लो। तो आपको नहीं ज्यादा नॉलेज है तो आप भेज सकते हो, और भेजना ही चाहिए। और सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कितने टाइप के केसेस को आयुर्वेद के थ्रू ठीक किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी लिमिटेशन है कि इसके बाद रेफर करना ही बेस्ट है? कौन से ऐसे केसेस हैं स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में या सेक्सुअल वेलनेस में जिनको रेफर करना ही बेस्ट होता है सर? रेफर करने की कंडीशन जब आती है अगर तो हमें, जो मैंने अभी तक पेशेंट देखे हैं उनमें से मुझे बहुत कुछ पेशेंट मिले जिनको रेफर करने की जरूरत थी। जैसे अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन बहुत सीवियर है, आपकी दवाइयों से मैनेज नहीं हो पा रहा है, या फिर वो सपोर्ट खुद पेशेंट नहीं कर रहा है आपको, तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास में जनरली मैं रेफर करता हूँ। दूसरे जो पेशेंट होते हैं जो बहुत कंसर्न रहते हैं अबाउट पेनाइल साइज, तो ऐसे पेशेंट वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे पेनल इम्प्लांट कराना है या मुझे साइज से रिलेटेड कुछ सर्जरीज करानी है, वो पेशेंट को मैं भेजता हूँ। तीसरे नंबर पे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि वेरिकोसील भी है, बच्चे हो चुके हैं, सब कुछ ठीक है, तो वहां सर्जरी कराने की ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जरूरत पड़ जाती है, तो वैसे पेशेंट को भेजता हूँ। अदरवाइज मुझे लगता नहीं जनरली कि किसी आपको रेफर करने की जरूरत है फॉर सेक्सुअल मेडिसिन। वो अलग बात है कि पेशेंट खुद अपनी इच्छा से चला जाए, उसके पीछे रीजन रहता है, रिजल्ट उसको ना मिले हो तभी जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। और आपकी बातें अच्छी हैं, आपका काउंसलिंग अच्छा है, आप कॉन्फिडेंस में पेशेंट से बात करते हो, आप खुद आपको नॉलेज है, तो बिलीव मी, मेरे खूब सोशल मीडिया हैंडल पे पेशेंट या गूगल पे मुझे रिव्यू करते हैं कुछ पेशेंट कि सर बहुत अच्छे हैं, मेडिसिन मुझे ज्यादा फायदा नहीं की है, स्टाफ बढ़िया है, ये तारीफ जरूर करते हैं। मतलब वहां पे आपका नेगेटिव कमेंट नहीं गया है, लेकिन इंटेंशन एक नेगेटिव ही देखा जाए। तो ये एक वैद्य की जो बातचीत करने का तरीका है, काउंसलिंग करने का तरीका है, उससे लोग इम्प्रेस होते हैं। और वो फिर आपसे जहां 1 महीने में ठीक नहीं हो, सॉरी 3 महीने भी इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुए, तो आगे वो 3 महीने इलाज कराने के लिए रेडी रहते हैं। और सर जो वैद्य जिनके पास कैपिटल नहीं है कि वो अपना ओपीडी या अपना ऑफलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सके, ओपीडी स्टार्ट कर सके, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्या स्कोप है सर सेक्सुअल वेलनेस में, और कहाँ से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए? देखो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और आप सिर्फ ऑनलाइन करोगे तो मुझे लगता है कि ये नहीं चल पाएगा आज के टाइम पे। क्योंकि पेशेंट जब आपसे अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो वो जरूर बोलेगा आपका क्लिनिक कहाँ, उसकी लोकेशन क्या, उसकी फोटोज क्या है, आपकी वेबसाइट कहाँ है, ये सब कुछ पेशेंट देखता है। क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन बहुत ज्यादा फ्रॉड चलते हैं। इवन कई बार मेरी वीडियोस लोग अपने इंस्टाग्राम, मेरी वीडियोस जो होती है उनको अपने ऐड पे लगा देते हैं, वहां से खूब पेशेंट ले लेते हैं और फिर पेशेंट के साथ फ्रॉड करते हैं। हमने ऐसे मान के चलो 3 से ज्यादा कंपनी को पकड़ा है जिन्होंने 100 पेशेंट देख लिए थे और पेशेंट के साथ फ्रॉड किया है। या तो कुछ दवाइयां किसी ने भेजी नहीं, किसी ने उनको कंसल्ट नहीं किया, 1100 1100 रुपए कंसल्टेशन फीस ले लिया। जब हमने देखा तो उस चीज को हमने एनालाइज किया, उसको सर्च किया कौन बंद है, तो बंद करवाया। तो सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरा, आप ये कहते हो कि मेटा पे हम चल सकते हैं, तो मेटा ऐड के थ्रू अभी आप ज्यादा नहीं जा सकते हैं, मतलब उससे रिलाई नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक करोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, इसलिए कि आज के टाइम पे मेटा ने मोर देन 40% आपका जो सीपीएल है वो बढ़ चुका है, यानी कि ऐड का खर्चा बढ़ गया है। तो और उसमें जीत कौन जाता है? कंपनीज। जो कंपनियां अपने कुछ डब्बे बना के आयुर्वेद के नाम से, ये लो ईडी के लिए, पीएमई के लिए लो, उसका बहुत बड़ा प्रमोशन करते हैं, वो कंपनियां फंडेड होती हैं, तो वो पैसा खर्च कर सकते हैं, वहां से रेवेन्यू वो कमा सकते हैं। हालांकि नेट प्रॉफिट उनको नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो फंड रेज करना है, तो उनको तो अपना सिर्फ रेवेन्यू दिखाना है, उन्हें प्रॉफिट से ज्यादा मतलब नहीं होता है। प्रैक्टिस ऑफलाइन करना कंपलसरी है, ये मैं कह सकता हूँ। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, तो आप किसी डॉक्टर के साथ में, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पाइल्स के सर्जन है तो उनका आपके साथ में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आपके पेशेंट
उनके पेशेंट दोनों अलग अलग फील्ड हो गए तो आप उनके साथ टाई अप कर सकते हो कि सर क्या मैं आप बैठ सकता हूँ आपकी ओपीडी में, मैं आपको कुछ रेंट पे कर दूंगा। एक ये ऑप्शन हो गए। कोई गायनी के डॉक्टर आप उनके पास बैठ सकते हो, जॉइंट डिसऑर्डर वाले के पास में बैठ सकते हो, अगर कोई आपको अलाउ करता है और रिलेशन अच्छे रहते हैं तो जरूरी नहीं है शुरुआत में इतना पैसा लगाओ, आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सर कुछ वैद्य हैं जिनके क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप अलाउ करें तो वी कैन टेक दैट आल्सो। श्योर श्योर श्योर। Anyone willing to ask anything can just raise their hand or unmute their mic. Anyone willing to ask anything can just unmute the mic. I would request Nitin Yadav ji to please unmute the mic. Hello, sir. हेलो हेलो डॉक्टर। हाँ, this is Dr. Sri Krishna. मुझे पूछना था कि सेक्सुअल अगर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या लगते हैं बडिंग वैद्य के लिए, प्रैक्टिशनर के लिए? आप अभी प्रैक्टिस करते हो? हाँ। ठीक है, और कितने साल को हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? अभी 2 ही साल हुए सर। 2 साल हुए, ठीक है। और कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप? अभी गोवा में सर। गोवा में, ठीक है। तो आपके पास तो पहले ही सब कुछ है, क्लिनिक अगर आपका खुद का है तो वहाँ आप सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो। गोवा में तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां तो इतने सारे टूरिस्ट रहते हैं। आप उसमें प्रमोशन के लिए जाइए, उसको बताइए लोगों की अगर आप गोवा घूमने आते हो तो एक बार जरूर इस क्लिनिक पे आइए, मैं सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ थ्रू आयुर्वेदा। तो एक आपके लिए कह सकते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्या क्या चीजें चाहिए, आई थिंक मैं ऑलमोस्ट सारे आंसर दे चुका हूँ। बाकी और भी कुछ आपके डाउट रहेंगे तो डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। कभी आपको लगता है कोई केस फंसता है, कहीं पे आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, तो हमारा आई थिंक इसके बाद में ग्रुप बन ही जाता है, तो जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ हम कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। नमस्कार डॉक्टर सर। नमस्कार डॉक्टर नितिन। सर मेरा एक ये डाउट है, अभी मैं जैसे पतंजलि में प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2.5 साल से, वैसे काफी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, लेकिन सेक्सुअली में लगभग 30% पेशेंट ही ठीक होते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको फर्स्ट मंथ में अच्छा रिजल्ट मिला लेकिन उसके बाद नहीं मिला। और सर एक थोड़ा सा ये भी था कि जैसे कि ज्यादातर आयुर्वेद में ये बोला जाता है कि जैसे पहली धातु का पोषण होगा फिर दूसरी का होगा, तो ऐसे करते करते जब जैसे तो शुक्र तो 7वीं धातु है, तो क्या इसके रिजल्ट 1 महीने में मिल जाते हैं? देखो यहाँ पे दो चीजें होती है। सबसे पहले करना ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आया, उस पेशेंट को मान लो एवियन है और आप एवियन का ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आपके पास आया। पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको एवियन है, लेकिन उसको ये फर्क पड़ता है कि उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, उसे पेन हो रहा है। तो सबसे पहले आप पेन को कम करोगे तो पेशेंट को लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। फिर आप उसको जो व्याधि की चिकित्सा है, यानी कि जो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता रहेगा, साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा। वही सेम सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी होता है। जब आप चीजें सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी दवाइयां देनी चाहिए जिससे पेशेंट को इरेक्शंस अच्छे आते रहे, टाइमिंग अच्छी बनी रहे, और साथ के साथ अपनी बीमारी जो उनका अंडरलाइन कॉजेस था उनको ठीक करते रहोगे। दूसरी बात आपने बोली पतंजलि में प्रैक्टिस करते हैं, तो पतंजलि में आप सिर्फ पतंजलि की मेडिसिन लिखते हैं, बाहर की भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? बाहर की भी कर सकते हैं सर, क्योंकि पर्सनल पेशेंट भी रहते हैं ऐसे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो हमें ज्यादातर जगह ये देखने को मिलता है कि अगर आपको मान लो मेडिसिन में रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं तो उसके पीछे क्वालिटी ऑफ मेडिसिन का भी फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी दवाई की क्वालिटी है, वो द्रव्य में गुण है पूरे, और वो ओरिजिनल है, वो ऑथेंटिक है, तो दवाई का असर होगा, ये तय है। तो सर ऐसे फिर फर्स्ट मंथ का अगर मैं कहूँ कि वो कहते हैं पहले महीने की यार मेरे को अच्छे हैं, लगभग 40-50% मेरे को रिलीफ है, तो इसका मतलब ये तो प्लेसिबो इफेक्ट हुआ फिर? नहीं, जरूरी नहीं प्लेसिबो इफेक्ट हो। तो कई बार पेशेंट भी आपको नहीं बताता है कि वो मान लो कोई अनमैरिड पेशेंट होते हैं, तो वो कहीं अपने दोस्त से फ्रेंड से मिलने के लिए गए, तो उनकी इतनी ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है एक बार में, अगर उन्होंने 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जाते हैं तो एक्सेसिव सेक्सुअल एंडेंजमेंट हुई है, तो या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया है, तो वो चीज पेशेंट हमें नहीं बताता है ताकि आप उनको डांटो ना। मैं अपने केसेस में देखता हूँ ज्यादातर पेशेंट के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये भी बात ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है।
जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन। सर, आपकी पर्सनल फेवरेट ड्रग कौन सी है? बस। नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं बता सकते कि पर्सनल फेवरेट कौन सी है। हर पेशेंट को अलग दवाइयाँ जाती, मुझे लगता है। मैं अ, अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ मेडिसिन की बात करूँ, द्रव्य की नहीं, तो हमारे पास 200 से ज्यादा मेडिसिन हैं जो मैं इस सेक्सुअल मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूँ, प्रिस्क्राइब करता हूँ। ओके तो सर, एक थैंक यू सिंगल सर। द्रव्य कभी भी महाराजा नहीं बन सकता है। नहीं हो सर। सकता है, जी वो अलग अलग, मतलब को डिपेंड करता है ना कि पेशेंट को ईडी, पीएमई, लो लिबिडो क्या है और किस वजह से हुआ है, तो वहां पे एक आपका फेवरेट द्रव्य हो सकता है। सर, हर डॉक्टर की एक पर्सनल फेवरेट होती है, सॉरी टू से, बट कोई बात नहीं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, जैसे आपने बोला कि हर कोई जो आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजी में जो वर्क कर रहा है, वो हर एक पेशेंट से 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा ले रहा है। जैसे मैंने भी सुना है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं कि सर वो बोलते हैं कि 15,000 का पैकेज है, 30,000 का पैकेज है, या जो भी है, मतलब 15 दिन का, 1 मंथ का। तो सर, आजकल सब लोग ना एजुकेटेड पीपल्स है, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आप क्या दे रहे हो। तो आप मेरा बताओ ये ना। नहीं, मैं नहीं सर, एक्चुअली जो जहां से अच्छा वो अच्छा। मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेरा ये पूछना है, जैसे आपने जो कोर्स अभी डिजाइन किया है, इसमें सिर्फ आप वो प्रोडक्ट्स या फिर आप वो पैकेजेस बताते हैं कि अपने पेशेंट्स को भी, मतलब कि आप ये लीजिए, या कोई आपसे ये चाहते हैं कि आप उसको प्रिस्क्रिप्शन दे। मान लो कोई भी एजुकेटेड है, मान लो समहाउ के कोई एक डॉक्टर ही है, वैद्य ही है आपका, जो आपके पास पेशेंट बन के आया, और वो ये कहता है कि सर आप जो मेडिसिन बोलोगे अच्छे से अच्छे कंपनी की लूंगा, लेकिन आप मेरे को बता दीजिए क्या लेना है मेरे को, मेरी एग्जैक्टली, ठीक है डॉक्टर रजत। ये इसकी वजह से मान के चलिए कि जो इनके धंधे चल रहे थे 50,000, 20,000, 30,000 पैकेज वाले, आप कह सकते हो इनमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ रहा है कि लोगों को ये लगता है ये तो सिर्फ धंधे करने वाले लोग हैं, ये 25,000 का पैकेज, 20,000 का पैकेज, ये फर्स्ट टाइम उनसे ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे लोगों को काउंसलिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, उनको डराया जाता है, तब वो वहां पे ले लेते दवाई। बहुत बड़े बड़े नाम है, कोर्स में सारी चीजें बताऊंगा आपको कि कौन कौन ऐसा कर रहे हैं। एज अ डॉक्टर मैं खुद भी और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, आप क्लियर लिखिए आपने कौन सा द्रव्य पेशेंट को दिया है और उसमें क्या क्या चीजें डली हैं। हमारे पास अगर कभी ऑनलाइन के पेशेंट रहते हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि सर मुझे एक एक द्रव्य की जो आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसकी फोटो भेजो, उसमें क्या कितना पड़ा है। तो अगर आप ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में चलोगे तो आप भी प्रैक्टिस कर पाओगे, आने वाली जनरेशन भी प्रैक्टिस करेगी, पेशेंट के थ्रू आपका जो फेथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जो पैकेज देने वाले लोग हैं वो उस पर मत जाइए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर का काम पैसा कमाना ही नहीं है, उसको ठीक करना भी है और पेशेंट के लिए लॉयल रहना भी है। तो सर, जैसे आप पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप अपने तरफ से बोलते हैं कि ये मेडिसिन ले लीजिए, या फिर आप उनको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं समहाउ कि आपने आरोग्यवर्धनी वटी दिया, XYZ कुछ भी दिया, तो आप ऐसा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब मेरा ये मैं पूछना है। मैं डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन बनाता हूँ सारे के सारे, इवन पेन से भी नहीं लिखता हूँ। उसमें हर एक द्रव्य का, अगर मैंने आरोग्य मिश्रण दिया है, आरोग्यवर्धनी वटी दी है, आपका त्रिफला पाउडर दिया है, या मैंने वीरस्तंभन वटी दी है, मैं क्लियर उसमें नाम लिखता हूँ। पेशेंट आपसे बात करने के बाद में ये समझ जाते हैं, 90% कह सकता हूँ मैं, कि मुझे सर से ही दवाई लेनी है, मुझे बाहर से नहीं लेनी है। और वैसे भी हर एक दवाई बाहर नहीं मिल पाती है, रेट उसे वही पड़ेगा। जब आपको मान लो वीरस्तंभन वटी लिखी है तो 2-3-4 कंपनी है जो बनाती है, जिसमें से अच्छी एक ही 2 कंपनी बनाती है जिनकी क्वालिटी अच्छी है। तो हमें नाम लिखना जरूरी है, केबिन में पेशेंट आएगा। हाँ, आपके एरिया में यह जानना जरूरी है कि पेशेंट बहुत ज्यादा चालाक होशियार ऐसा तो नहीं बनते हैं, वो आपको देखने की जरूरत है। जी। तो एक आपको कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि मैं इस द्रव्य को नाम चेंज करूं या कुछ करूं, तो वो एक दो मेडिसिन के साथ में होना चाहिए, बस उसमें भी आपका लेवल होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, वो जरूरी है। जी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर क्वेश्चन पूछना था। सर आपने के जो पेशेंट में ये ट्रीटमेंट मतलब ट्रीट किए हैं, तो उसमें ज्यादातर आपको उसमें रिजल्ट अच्छे मिले, शोधन ट्रीटमेंट में या शमन ट्रीटमेंट में? और अगर शोधन में वैसा कौन सा शोधन स्पेसिफिकली आपको ज्यादा? मैं डॉक्टर श्री कृष्णा, मैं एक चीज बता देता हूँ कि शोधन का मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है,
मैं कह सकता हूँ सिर्फ 5% पेशेंट में मैंने शोधन किया है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में नोएडा में बैठता हूँ और ये कॉर्पोरेट वाला एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पेशेंट अलाउ नहीं करते मुझे कि मैं 10 दिन के लिए आपके पास शोधन कराने के लिए आऊं। तो वो कम पेशेंट होते हैं, इसलिए मुझे इसका ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। जो 5% पेशेंट का एक्सपोजर है, तो मैंने उसमें ये जरूर देखा है कि उनको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ओके जैसे ओके अगर सर। हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बात करें, तो हमारा शुक्रगतवात जरूर उससे बढ़ता है। तो अगर आप उसमें उत्तर बस्ती देते हैं, तो उसमें रिजल्ट हमने ज्यादा अच्छे मिलते हुए देखा है। लेकिन वही बात है कि पेशेंट का आना रेगुलर होना जरूरी है। शिरोधारा से भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन पेशेंट का कराना जरूरी है। इसके बाद में जब हमें पता चलता है पेशेंट नहीं करा पाएगा, उसको जगह उसके लिए सुटेबल नहीं है, टाइम वो नहीं आ सकता डेली, तो हम शमन चिकित्सा पे ही जाते हैं। ओके सर। और एक पूछना था सर, कि आपको कॉमन हेतु जितने भी रजिस्टर्ड पेशेंट है उसमें कॉमन हेतु जो मानस और हार्मोनल ज्यादातर आपने बोले, हाँ, तो वो छोड़ के आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक हेतु अलग से मिला है क्या, मतलब? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप जितने ज्यादा नंबर पेशेंट से बात करोगे ना, तो सबके अलग अलग हेतु होते हैं। एक मैं पेशेंट का आपको बताऊं, आई थिंक ही इज 24 ईयर ओल्ड, और शायद ये झारखंड से है। हमारे पास यहाँ पे एडमिट भी हुए थे। उनका यही था कि वो उनके साथ में कई सारी रिलेशन उनके रहे थे, वो अनमैरिड है। पहले उनको हिस्ट्री गांजे की बहुत ज्यादा थी। उसकी गांजा ज्यादा लेने की वजह से उनकी टाइमिंग ऑफ कोर्स ज्यादा बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे करके उनको इरेक्शन टाइमिंग, स्पर्मेटोरिया, नाइटफॉल, ये सारी चीजें हो गई। और मानसिक पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक उनकी महिला मित्र थी जो खुद एक मैरिड वुमेन थी, उनके हस्बैंड को कुछ डिजीज और ये अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से वो उनसे सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती थी। तो जो पेशेंट था, मेरा पेशेंट था, ये उनसे मिलता था, उनके साथ उनके सेक्सुअल रिलेशन रहते थे। और सेक्सुअल रिलेशन इतने ज्यादा रहते थे कि एक एक दिन में 5-5 6-6 बार सेक्सुअल रिलेशन रहते थे। तो उस कंडीशन में जो आपकी इमरजेंसी मेडिसिन होती है, जैसे आपका टाडालाफिल या सिंडेलाफिल, उनसे काम चलाते थे। तो ऐसे पेशेंट में हमें क्या करना होता है कि उनको हमेशा बल्ली चिकित्सा देके, उनको मानसिक चिकित्सा में हम उनका शोधन करवा के, साथ में उनका जो शिरोधारा है वो देके, मेदी रसायन देके सबसे पहले उनको स्टेबल करते हैं। हमने उनको 10 दिन के लिए यहाँ एडमिट रखा था, वहां से ठीक किया, और आज वो बहुत खुश है। मुझे लगता है शायद 4 महीना या 3 महीने के आसपास हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए। तो हेतु आपको जो बताए हैं वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन हेतु कोई भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके सर। और दूसरा एक पूछना था सर कि क्रॉनिसिटी ऑफ द डिसीज और क्रॉनिसिटी और एक्यूटनेस ऑफ द डिसीज, इसका साध्य पे कुछ ये पड़ता है क्या, असर पड़ता है इसमें, स्पेसिफिकली इन द रिप्रोडक्टिव? पड़ता है। मैं ये देखता हूँ ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसकी सेक्सुअली एक्टिव हुए 30 साल की उम्र में हुए, अब इसके बाद में 30 से लेके 40 तक उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने नुस्खे बहुत आजमाए हैं। किसी ने शिलाजितू खा लिया तो पेट खराब हो गया, किसी ने अश्वगंधा का ओवरडोज ले लिया, जैसे आजकल गूगल पे, इंटरनेट पे खूब फेमस है। तो वो लेते 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 उनकी धातुएं और ज्यादा खराब हो गई। अब उनको ये लग गया कि मैं कुछ ठीक नहीं हो सकता, फिर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, फिर उनको स्ट्रेस हो गया, फिर उनको फाइनेंशियल इश्यूज हो गए। तो ये चीजें देखने को बहुत मिलती हैं। तो वहां पे हमें थोड़े से रिजल्ट मुश्किल होते हैं, लेकिन मिल जाते हैं अगर पेशेंट आपको सही से फॉलो करेगा। तो उसमें उनका प्रॉपर डाइट, लाइफ स्टाइल करेक्शन, उनके जितने हेतु हैं, बोलो अल्कोहल कम लो, स्मोकिंग कैसे कम करोगे, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तभी पेशेंट ठीक होता, नहीं तो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। पेशेंट करेगा क्या, जस्ट आपको छोड़ के कहीं और डॉक्टर के पास चला जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब वो रहते हैं ऐसे केसेस, कह सकते हैं 15 से 20% रहते हैं। ओके सर। और एक पूछना था सर, जैसे कि आघातज एक अगर हेतु है, तो आपके पास अगर ऐसे कुछ है रजिस्टर्ड केसेस आघातज ऐसे हेतु है और वो सक्सेसफुली ट्रीट हुआ है? आघातज में जनरली हमारे पास पेशेंट आते नहीं है। नहीं, फॉर अगर सर एग्जाम्पल, हिस्ट्री रहेगी आघात की और उसके बाद जो भी मॉडर्न के या फिर सर्जिकल जो भी ट्रीटमेंट हो उसमें करवा लिया, पर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो इसलिए आयुर्वेद के पास आ गया बहुत सालों के बाद, तो उस चीज में हम क्या ये कर सकते हैं?
देखो उसका पहले तो जानना जरूरी है कि एज कितना है, वेट कितना है, क्या करता है क्या नहीं करता है, और आघात लगी है तो कहाँ पे आघात है। तो ये सब जानने के बाद ही पता चलेगा आगे कितना ट्रीटमेंट ले चुका है। अगर मान लो किसी को बहुत हेवी आयुर्वेद एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी, इंजेक्शन लगाने के बाद भी इरेक्शंस नहीं होते, तो हमें जाने की जरूरत है। तो ये पता करेंगे तभी ठीक होते हैं। हालांकि आघातस वाले केसेस जनरली बहुत कम होते हैं, या फिर पता नहीं चल पाते, पेशेंट बताते भी नहीं है, डिनाई कर देते हैं ऐसा कुछ हुआ था। आते हैं तो ठीक आप जरूर हो सकता है अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो। आपके पास सर कोई है ऐसे रजिस्टर्ड मुझे ऐसा कोई याद तो नहीं है कि ऐसा कोई आघातस पेशेंट आया हो। हाँ, लेकिन कुछ डिजीजेस होती हैं अलग अलग, जैसे पिरोनी डिजीज है तो वहां पे प्लेग बन जाता है आपके रिपोर्ट पेनाइल एरिया में, तो उनको हम आसानी से रिकवर करके आगे चला सकते हैं, लेकिन आघातस वाले जनरली नहीं आते। ओके 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 मेरी प्रैक्टिस में नहीं आया। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर। सर मुझे एक बात पूछनी थी, जो आप जैसे जो कोर्स कंडक्ट करते हैं उसके लिए स्पेसिफिकली हमें खाली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना है या इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलते हैं? आपकी वॉइस मुझे थोड़ी क्लियर नहीं लग रही है, एक बार दोबारा आप बताओगे? सर अब आ रही है मेरी आवाज सर? अभी ठीक है। सर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करेंगे या इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के लिए, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन भी हम देंगे उसके अंदर या खाली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा? नहीं, आप आयुर्वेद दो। एलोपैथ तो सबको पता है ना, 3-4 चीजें आती है, एलार्जिन, एलआर कार्टिनिन, आपका डेपोक्सिटिन, साथ में आपका टाडाफिल, सिंडेलाफिन, वो सब पेशेंट को पता है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि जैसे पंचकर्मा के अंदर कुछ स्पेसिफिक लोकल जो लघु कर्म होते हैं, क्या इसके अंदर भी कोई ऐसे लघु कर्म आप उसके अंदर गाइड करेंगे सर? हाँ, मैं बताऊंगा जरूर कि कौन कौन से पंचकर्मा लघु कर्म है जहाँ पेशेंट को देना जरूरी है, कौन कौन सी कंडीशन में देना जरूरी है, तो वो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है कि 25 डेज सीरीज में हम एक्चुअली में क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन सी डिजीजेस और किन किन चीजों पे टारगेट करने वाले हैं सर। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है, अगर आप एक बार ब्रीफ कर दें। देखो, सेक्सुअल मेडिसिन से रिलेटेड आपके जो जो डायग्नोसिस की केसेस, जो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं, हम उस पर बात करेंगे। कौन कौन सी मेडिसिन आपको देनी चाहिए उन पे हम बात करेंगे। कौन कौन से पंचकर्मा आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे, हम उन पे बात करेंगे। कितना स्कोप है इस प्रैक्टिस में, हम उस पे बात करेंगे। कैसे क्लिनिक पे सेटअप रखें, तो हम उस पे बात करेंगे। कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, हम उस पे बात करेंगे। कुल मिला के पेशेंट को हमें इस कोर्सेस में ये ज्यादा जानना जरूरी रहेगा, डायग्नोसिस के साथ में जो पेशेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो उनके क्वेरीज आती है पेशेंट की, उनको टैकल आप कैसे करोगे। आपको नॉलेज अगर नहीं है उस फील्ड का या उस शब्द का, उस बीमारी का, तब आप कैसे टैकल करोगे। कई सारे पेशेंट आपको फ्रस्ट्रेट होके आएंगे कि सर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैंने ट्रीटमेंट लिया है लेकिन मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेरा पैसा बर्बाद गया। ऐसे भी लोग आपको बोलेंगे, तो उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए ताकि आपकी इमेज नेगेटिव ना बने या वो आपके बारे में नेगेटिव ना सोचे, ये सबसे ज्यादा चीजें मैं इस पे फोकस करूंगा। आई थिंक बाकी वैद्य आपको एक डिटेल में हमने कोर्स में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं वो तो जरूर बताया होगा, और साथ में उसके साथ कुछ एड ऑन्स भी मैं करने वाला हूँ, बीच बीच में कुछ रिसर्च एड ऑन करने वाला हूँ। कुछ अपने पेशेंट की जो हिस्ट्री है, जो हमारे सक्सेस केसेस हैं जो बहुत क्रिटिकल थे, उनको भी बात साथ में लाने वाला हूँ। या ड्यूरिंग द कोर्स हमें लगेगा कि ये टॉपिक छूट गया या ये चीज हमें बताना जरूरी था, तो हम बीच बीच में हो सकता है कुछ 1-2 क्लास एक्सटेंड भी करें या उसमें कुछ एड ऑन करें, वो भी करते रहेंगे। जिन्हें भी कोर्स की डिटेल्स चाहिए उसका पूरा इंफॉर्मेशन चैट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। जी डॉक्टर दीपक जी, कैन प्लीज अनम्यूट। हाँ सर, मेरा एक सवाल था कि ये प्रैक्टिस के लिए थोड़ा इमेज बिल्ड करना जरूर रहता है कि हाँ ये डॉक्टर इस पे भी काम करते हैं, तो करेक्ट। इसके लिए आप हमें हेल्प करने वाले हैं क्या? मैं आप कैसे करोगे तो उसकी कोशिश तो जरूर करूंगा। बाकी आपके ऊपर जो काम रहेगा, जो मेहनत है, जो आपका एक्विजिशन है, वो आपको ही करना होगा। तो जो तरीके हैं जिससे आप एक इमेज बिल्ड कर पाए, तो वो हम जरूर हेल्प करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। और सर ये जो चीजें हैं, मतलब पंचकर्म कंपलसरी है या फिर उसमें हम बिना पंचकर्म पे भी इस पे रिजल्ट दे सकते हैं?
मैं 95% पेशेंट में पंचकर्मा नहीं करता हूँ। यस। और भगवान धन्वंतरी की कृपा से हमारा जो रिटेंशन रेट है, आई मीन पेशेंट हमें फॉलोअप के लिए आता है, वो पेशेंट आता है आपका 80% से ज्यादा। अगर 100 पेशेंट आज देख रहा हूं तो कल के आज के दिन, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हमारे पास 80 पेशेंट तो आते ही हैं। तो रिटेंशन रेट अच्छा रहेगा तो पेशेंट को जरूरी नहीं है आप कैसे ट्रीट कर रहे हो। मैंने बताया ना कि इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका पेशेंट के साथ रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में अगर पंचकर्मा, क्योंकि हमारे आयुर्वेद का बहुत अच्छा एक फील्ड है, एक अच्छा प्रोसीजर है, तरीके हैं जहाँ से उसकी बीमारियां कई सारी उनको इंस्टेंट रिलीफ दिया जा सकता है, तो करना जरूरी है, वहां पे करो अगर पेशेंट विलिंग रहता है तो। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम डॉक्टर दीपक। और किसी वैद्य का अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप में कोई सवाल रह जाते हैं तो प्लीज वहाँ पे आप शेयर कर देना, और डॉक्टर आप मुझे उनको बता देना, कोशिश करूंगा वहाँ पे मैं सवाल जिनके सवाल रह जाते हैं तो वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। सर मेरा और एक सवाल था कि फॉर्मुलेशंस के बारे में, तो ऐसे कोई आपके मतलब पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है या फिर हमें बनाना आप सिखाने वाले हैं, कैसा मतलब? देखो मैं आपको, होता क्या है, आपने बहुत सारी क्लासेस ली होंगी, बहुत सारे कोर्सेस किए होंगे, अल्टीमेट आप एक अपना जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिजाइन करते ही हो। बाय द टाइम डे 1 से मैं भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने कुछ अपने फॉर्मुलेशन डिजाइन किए हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता गया, पेशेंट की डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई वैसे फॉर्मुलेशन डेवलप किए हैं, तो मैंने भी वैसी चीज की हुई है। दूसरी चीज आपने क्या पूछा है कि हम कैसे दवाइयां बनाएं, मेडिसिन में क्या क्या चीजें दे सकते हैं, उसके क्या क्या रेशियोज हैं, डोजेस क्या है, ये मैं जरूर आपको बताने वाला हूं। अब कुछ ऐसी भी चीजें बताने वाला हूँ, ब्रह्मास्त्र जैसे एक आई थिंक डॉक्टर यादव थे, तो उन्होंने बोला था कि डॉक्टर साहब एक डॉक्टर की एक अपनी फेवरेट द्रव्य जरूर होता है, तो वो आप हमें शायद बताना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी वो द्रव्य ढूंढ सकते हैं, हम भी हमने भी ढूंढा है, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या। अगर पेशेंट को मान लो पीएमई है, ईडी है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल है, तो वो सबके लिए आपका फेवरेट द्रव्य अलग होता है, सेम नहीं होता कि ये नहीं ये दवाई हर पेशेंट को देनी ही है, वो नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीजें हैं, होती हैं बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनको मान लो ईडी के केसेस है या पीएमई के केसेस है, फॉर एग्जांपल मैं मेडिसिन सबको देता हूँ, शायद ही ऐसा कोई पेशेंट होगा जिसको मैं मेडिसिन नहीं देता, ताकि पेशेंट का माइंड रिलैक्स रहे, उसके हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज अच्छे से रहे, नींद प्रॉपर 7-8 घंटे की ले पाए, और जो आपका ड्यूरिंग द इंटीमेसी आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है लोगों का, कि कहते हैं हमें सर वैसे तो इरेक्शन अच्छा आता है, जैसे हम पेनिट्रेशन की तरफ जाते हैं वहां पे इरेक्शन चला जाता है, तो जो आपका वेन्योजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वहां पे आपका डोपामिन का और आपका सेरोटोनिन का बैलेंस होना जरूरी है, वहां आपको मेडिसिन जरूर है। तो हाँ, तो मेरा फेवरेट द्रव्य कहेंगे मेडिसिन है, हर किसी पेशेंट में जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर आपका मेडिसिन जो है वो आप खुद प्रिपेयर करते हैं या फार्मेसी के मतलब फार्मेसी का यूज करते हैं? डॉक्टर अविनाश, होता क्या है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते हो और आपके पास फिर होता है क्या, एक हर लेवल का पेशेंट आना शुरू हो जाता है, तो मुझे चैलेंजेस बीच में ये आए थे कि आप मुझे लूज मेडिसिन, लूज पाउडर ये ना दो, आप मुझे प्रॉपर पैकेजिंग लेवल के साथ मेडिसिन दो। तो फिर मैंने ज्यादातर मेडिसिन अपनी खुद मैन्युफैक्चरर थर्ड पार्टी में करवा रहा हूँ, जो हमें अच्छी फार्मेसी लगती है उनसे। लेकिन अभी भी मैं 70% मेडिसिन क्लासिकल लिखता हूँ, 30% मेडिसिन पेटेंट लिखता हूँ, जो मैंने बनाई अभी या किसी और कंपनी की अच्छी है वो। ओके सर। नमस्ते सर जी। नमस्कार। जैसा मॉडर्न मेडिसिन में टडालफिल या फिर सिल्डेनाफिल ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है, तो ऐसे कुछ आयुर्वेदिक में भी ऐसे शॉर्ट एक्टिंग से क्या है, जैसे कि अपन एक कंटिन्यूएशन में ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि अपन अपने इसमें अभी पेन किलर्स दे रहे फॉर वाट डिसऑर्डर वगैरह, तो इसी तरीके से अगर एक शॉर्ट एक्टिंग अगर कुछ ड्रग्स अपन यूज कर सकते हैं यस है, इन आयुर्वेदिक है कि जो आज दोपहर को लो तो एटलीस्ट वो एक ट्रस्ट कर सके कि नहीं हम लोग
ले सकते हैं वो भी? हम 24 आवर्स में कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को इरेक्शन आ सकता है अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो। पीएमए एक लॉन्ग प्रोसेस है, पीएमए के लिए बहुत सारी चीजें मायने रखती है। ईडी में हाँ काम कर सकता है, ऐसे भी द्रव्य हैं जो 24 घंटे के अंदर काम करे, लेकिन विद इन हाफ एन आवर ये अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में यानी कि इतने पेशेंट में नहीं देखा कि आधे घंटे में रिजल्ट आ जाए जैसे आपका टडालाफिल सिंडिलाफिल करता है। ओके, बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम, नमस्कार हाँ, डॉक्टर। नमस्कार सर। जी सर, हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट है सर, वो आते हैं जो उनको क्रोनिक मास्टरबेशन का हेतु निकल के आता है जी। 10 साल से हमारा मास्टरबेशन का हेतु है सर। तो वो छोड़ना चाहता है फिर भी छोड़ नहीं पाता। अब उनका शादी अब लगा या फिर शादी हुआ है, तो उनका टाइमिंग मास्टरबेशन की वजह से बहुत वीक हो गया है, कमजोर हो गया है। तो उसको कैसे रिकवरी किया जाए, उसमें आप कैसे क्या करते हैं सर, उसका थोड़ा बताएंगे क्या? देखो, आपके पास में अगर मैं ये कहूंगा कि जितने पेशेंट आएंगे उनमें से मुझे लगता है 40-50% पेशेंट ऐसे ही होंगे जो ओवर मास्टरबेशन के होंगे। तो हमें उनकी वीर्य की एक तो ये देखना पड़ेगा वो थिन है या थिक है। तो उसको बढ़ाने वाले द्रव्य आयुर्वेद में बहुत अच्छे हैं, धातु पौष्टिक चूर्ण भी है, वानरिग्नोस भी है, वो आप देना शुरू करेंगे। साथ में स्ट्रेस को कम करना शुरू करेंगे, बल्ली चिकित्सा देंगे जो आपके पास अवेलेबल हो उनमें से। और पेशेंट को कहेंगे ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करें, जब आपके बॉडी के अंदर स्टेमिना एनर्जी आ जाए। साथ में आप उसको मिद्रिसाइन देंगे और कुछ स्तंभन कर मेडिसिन जो सीमन को जल्दी निकलने से रोके, ऐसे स्टार्ट करेंगे। और सबसे जरूरी चीज है वो बंद कैसे करें, तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो उसको सच्चाई बताओ और दूसरा उसको डराओ कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होने वाला है। तो हम ये धीरे धीरे करके ड्यूरिंग द कोर्स एक एक हर चीज सीख जाएंगे कि पेशेंट को बंद कराना कैसे है। तो पेशेंट कई बार ऐसे बोलता है, सर मैं ठीक तो नहीं हूँ लेकिन मैं मास्टरबेशन छोड़ दिया, अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ऐसा भी होता है। मास्टरबेशन, ओवर मास्टरबेशन वाले ज्यादातर केसेस मिलेंगे। जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन एडिक्टिव है, मतलब शादी के बाद वो फोन देखने की आदी हो चुके हैं, फोन देखते ही है। तो वो उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे छुड़ाया जाए सर आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है, सर? कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन एडिक्टिव है, अभी भी फोन देख। क्लियर नहीं है। हाँ, अब जा रही है सर? आपके वॉइस क्लियर नहीं है, आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है। अब जा रही है सर? अभी भी ब्रेक हो रही है। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में अब जा रही है? सर मेरा क्वेश्चन एक अब जा है रही है आवाज? कि अगर आप अपना करियर में शुरुआत इस लाइन में करना चाहते हैं बेसिक्स इनिशियल से, तो कैसे करें? सॉरी सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप शुरुआती दौर में रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल से रिलेटेड अगर करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर कैसे, मतलब बेसिक चीजों को कैसे ग्रो करने का, मतलब इनिशियल स्टेज से? देखो, उसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं पहले से करते हैं तो क्लिनिक लेना जरूरी है, बैठना जरूरी है। मुझे लगता है ज्यादातर सवालों का जवाब मैं दे ही चुका हूँ। आपको उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है, अपने दोस्तों को बताना जरूरी है, लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। आप डायरेक्ट ये मत बोलो कि आई एम डॉक्टर शिवम गुप्ता, आई एम डूइंग प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल मेडिसिन। आप उनको, लोगों को उनके रीजन बताओ, उनके कॉजेस बताओ कि अगर हम ज्यादा नींद नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है, उसकी वजह से आगे चल के आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर या लो लिबिडो जैसी चीजें हो सकती है। इस तरीके से हम एजुकेट करना शुरू करेंगे, उसके पोस्टर व्हाट्सएप पे लगाएंगे या आपके ग्रुप में जो लोग हैं एजुकेट शुरू करेंगे, तो यहाँ से आपका प्रमोशन शुरू होता है। बाकी क्लिनिक एक सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो तो चाहिए चाहिए। और इसके जरूरी, सबसे जरूरी चीज है उसका ज्ञान होना जरूरी है। तो ज्ञान होगा, उसके बाद में प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे चीजें अपने आप क्लियर होती जाती है। मतलब कोई ऐसा तो है नहीं रॉकेट साइंस है। आप आज प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, 1 साल 6 महीने 2 साल 3 साल में आप सेटल्ड हो जाओगे। जो जो गलतियां होंगी उनको सुधारते जाओगे, जो कमियां दिखेंगे उनमें सुधार करते जाओगे, तो अपने आप एक सक्सेसफुल सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिशनर बन जाओगे। सर एक क्वेश्चन और है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन मेडिसिन जो औषधि है उनका सिलेक्शन कैसे करना कि यही मेडिसिन कारगर हो, ये भी एक बड़ी चुनौती रहता है न्यू कमर्स डॉक्टर्स के लिए। जैसे मैं न्यू कमर्स डॉक्टर हूँ, तो
अच्छा ठीक है, देखो दवाइयाँ कैसे पता चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे अब पता चल पाया कि ये वाला द्रव्य है, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो वो हम आपको इस कोर्स में तो बताएंगे क्या क्या चीजें, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे पेटेंट हो, चाहे फिर आगे चल के आप अपना फॉर्मुलेशन बनाए। तो उसकी चिंता करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। जो द्रव्य है जिसके रिजल्ट मिल सकते हैं, जल्दी मिल सकते हैं, वो हम जरूर बताएंगे एक एक चीज। और और बिलीव मी, कोई डॉक्टर किसी का कुछ नहीं खाता, एक मतलब क्वेश्चन बहुत और सारे है डॉक्टर। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे समन और शोधन की बात चल रही था, तो बहुत ऐसे जगह है, जैसे मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, विलेज साइड एरिया है, ये सब आजकल जो पंचकर्मा वगैरह चल रहा है, मेट्रो सिटी में तो बहुत इजी है, लोग एजुकेट है, मैं पंचकर्मा का चीजों का महत्व जानते हैं। लेकिन गाँव में मैक्सिमम लोगों का डिमांड है कि नहीं, मेडिसिन दे दो, बात खत्म, पंचकर्मा के लिए 10 दिन नहीं आएंगे, अगर अगर नहीं तो डॉक्टर लूट रहा है, लूटने का तरीका है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। तो उस स्थिति में अगर आपको पता है कि इसको शोधन जरूरी है, बट वहां आप शोधन क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखो, आपका अगर एक्सपीरियंस। सच में ही किसी पेशेंट को शोधन की जरूरत है और वो नहीं कराना चाहता है, तो ये आपको हजारों में से एक आध पेशेंट होगा। तो ऐसे पेशेंट पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहिए। तो उनको बोलो कि यही कराना है या फिर कहीं और से करा लो, आप सिटी सिटी में चले जाओ तो ठीक है। नहीं कराना चाहते आप छोड़ दो उस पेशेंट को। चाहिए तो उसको थोड़ा टेम्परेरी दवाई दे दो, क्योंकि आप अपना एक पेशेंट के लिए बाकी चीजें तो खराब नहीं करोगे। मतलब समान चिकित्सा से रिजल्ट अच्छी मिलती है ना, अगर गांव आसानी विलेज से, में किया जाए? आसानी से, बड़ी आसानी से, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, यस सर। उसको हम जो है विरेचन दे सकते हैं, विरेचन से उसका शोधन हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल, मतलब आप नित्य विरेचन तो दे ही सकते हो। मान लो उसको लगता है कि आपको जरूरत है, तो नित्य विरेचन भी दे सकते हो, आपको नहीं, लघु अब वमन भी करा सकते हो। जैसे ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई गांव में पंचकर्मा नहीं चल सकता, वहां आप विरेचन से उसका शोधन कर सकते हो? कर सकते हैं, बिल्कुल जी कर जी। सकते हैं। और ज्यादातर पेशेंट आपको मिलेंगे ही जिसमें आप कुछ ना कुछ दवाई ऐसी देंगे जिससे उनका शोधन शुरुआत में हो। जी तभी दवाइयां आयुर्वेद की अच्छी है। आयुर्वेद में तो सीधे सीधे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर जी किसी को बाजिक कारक और रसायन चिकित्सा करनी है तो जी, आपको सबसे पहले शोधन करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। शोधन क्यों करना जरूरी है, तो उसमें आप कुछ क्यों एरेनिवरस हरितकी दे दोगे तब भी आपको पेट साफ हो जाएगा दो जी चार जी पांच दिन के लिए। जी जी, हम रसायन से ही चिकित्सा करते हैं जी। तो हम पहले पहले क्षेत्रीकरण करते हैं, क्षेत्रीकरण करने के बाद ही रसायन स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, अब आवाज जा रही है सर? सर आवाज आ पा रही है? सर को एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, 1-2 मिनट में ज्वाइन हो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे पेशेंट में हम धातु पौष्टिक के अलावा भी जैसे रस औषधियाँ भी यूज करते हैं, शक्कर वल्लभ हो गया, मनमत हो गया, इवन मैं प्रैक्टिस में हिंगुल और संखिया का भी काफी यूज किया है मैंने। लेकिन और मानसिक स्तर के लिए भी थोड़ा सा, जिस तरह एंजाइटी का भी पार्ट मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना पेशेंट को सेटिस्फाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सब अप्रोच के अलावा भी कुछ ऐसी अप्रोच पेंडिंग है जिससे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं? देखो, औषध से जरूरी नहीं है कि हमेशा हर पेशेंट को औषध से ठीक हो जाए।
बहुत बार हमने बताया ना कि पेशेंट को एक ऐसा हिडन कोज या रूट कोज रहता है जो हम शायद नहीं समझ पाते हैं, तो उसको जानना जरूरी है। अगर हमें वो चीज पता चल जाए तो ऐसे मान के चलिए रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन जो बहुत हैवी रस औषधियां होती है मैं जनरली यूज नहीं करता हूँ। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब किस तरह का कॉज जो जनरली देखा जाता हो, जो हम इग्नोर कर देते हैं अक्सर? लोगों में जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत मिलते हैं आज के टाइम पे। जो पेशेंट कई बार हमारे पास ये आते हैं कि उनके ऑफिस में भी रिलेशन है और घर में भी रिलेशन है। तो ऐसे पेशेंट दो तरीके के आते हैं कि वो कहेंगे कि कोई दवाई मुझे असर नहीं करती है, लेकिन वाइफ के साथ में रिलेशन अच्छा रहता है लेकिन बाहर रिलेशन अच्छा नहीं रहता है। कई बार ऐसे पेशेंट बोलेंगे तो वहां पे उनका इंटरेस्ट वाइफ से खत्म हो चुका होता है। दूसरे पेशेंट मैंने ऐसे देखे कि उनको वाइफ के साथ में अच्छा आता है, बाहर नहीं आते हैं। बाहर के पीछे फिर उनका रीजन डर हो सकता है, फियर हो सकता है कि वो 1-2 घंटे के लिए चोरी छुपे अपने ऑफिस से कहीं मिलने गए हुए हैं, तो वहां पे उनको फियर इतना ज्यादा था, परफॉर्मेंस एंजाइटी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिले। तो ऐसे केस में पेशेंट की सिर्फ काउंसलिंग ज्यादा मायने रखती है। और सर आयुर्वेद में जैसे बहुत सारे अभी बाजार में इस तरह के भी अवलेह आ गए हैं, कॉस्टली जो फर्स्ट डोज से ही अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। बिलीव मी 100% उसमें एलोपैथिक मेडिसिन मिली है। हाँ, ये मुझे भी लगता था। 100%। आपके हमारे गाजियाबाद में 70-80 कंपनियों के छापा पड़ते हैं, हमेशा पकड़े जाते हैं। नहीं सर, इसमें जो है एक्सट्रैक्ट कुचला अगर आपके पास है तो वो जो है टडालाफिल से भी ज्यादा काम करता है। जैसे एक्सट्रैक्ट कुचला है, ओपियम है, तो ये चीजें जो अर्धोर संख्या है, तो ये चीजें इमीडिएट रिएक्ट करने वाली है। आपने क्या बताया सर? संख्या कुचला, एक्सट्रैक्ट कुचला, ठीक है जी। सर ये मैंने बहुत यूज किया है, शुद्ध हिंगुल भी, संखिया भी, कुचला भी, और फिर भी पेशेंट ऐसे रह ही जाते हैं जो कहते हैं कि इन सब के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं भाई जी, ऐसा जो आपने देखिए कुचला यूज किया है ना, मोस्ट प्रॉब्ली जो कुचला यूज करते हैं ज्यादातर वैद्य लोग कुचला शुद्ध करके यूज करते हैं, और वो शुद्ध कुचला इतना काम नहीं करता, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट अगर निकाला जाए वो बहुत ज्यादा काम करता है। वो तो अगर आपकी 1 किलो दवाई है तो 1 किलो दवाई में 10 ग्राम भी इतना ज्यादा काम करता है, आप सोच भी नहीं सकते। हेलो डॉक्टर, किसी और का भी कोई क्वेश्चन तो प्लीज ले लो। एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी डॉक्टर विकास। सर मेरा एक क्वेरी थी सर। एक्चुअली जैसे हमारे पास पेशेंट आएंगे, आजकल क्या है, पेशेंट के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है ना? तो हम बिना शोधन चिकित्सा के भी कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं जो क्रोनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो ऐसे केसेस में सर, सेक्सुअली डिजीज में बिना शोधन के भी क्या हम रिजल्ट पॉसिबल है? देखो, बृहत आपका जो वमन है, विरेचन है, ये जरूरी नहीं कराना। अभी सर ने बोला भी था कि हम उनको डेली विरेचन भी करा सकते हैं या उनको लघु वमन भी करा सकते हैं अगर जरूरत है तो। और रही बात अगर उनको लगातार ट्रीटमेंट लेना है, मतलब क्रोनिक केसेस में भी उनको परमानेंट रिजल्ट मिलते रहे, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो ऑफ कोर्स मिल जाते हैं। दवाइयां थोड़ी लंबे समय तक चलती है, तय। और पेशेंट को ये चीज एश्योर देना जरूरी होता है कि आयुर्वेद में सीधे लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि मरते दम तक आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहे तो आपको उसके लिए एक वाजिगरक लेना जरूरी है। जी सर। और सर ऐसे पेशेंट्स में कितनी एज तक हमें ट्रीटमेंट हमको मतलब देना चाहिए? क्योंकि पेशेंट तो 70+ भी आ जाते हैं, लेकिन जो एक उनको एक एज का फर्क रहेगा, तो हमको कितने एज तक को हमें क्राइटेरिया में रखना चाहिए कि हम इनको ठीक कर सकते हैं? देखो, आप मना मत करो लेकिन सच्चाई बता दो। जो 70+ पेशेंट है, कई बार ऐसा आपको दिखेगा कि 50 एज है लेकिन लगते उनको जो बल है वो बल उनका 70 वाला है, और कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि 70 वाले पेशेंट का बल 55 साल वाला है। तो आपको यंग दिखेंगे,
कोई एथलीट्स होते हैं, आर्मी रिटायर्ड्स होते हैं, तो ऐसे लोगों में तो आप चिकित्सा कर ही सकते हो। तो जी जी उनको सर। सीधे सीधे बोलो आपको 1 द्रव्य या 2 द्रव्य, या आपको ऐसा दिनचर्या रूटीन फॉलो करो, ठीक रहो। 5 साल, 4 साल, 6 साल जब तक आपको ठीक रहना है तब तक दवाई कुछ लेते रहो। बीच बीच में सर्दियों में आपका ये बाजीकारक रसायन लेते रहो, ऐसे ठीक होते हैं। तो मेरे पास जो मैक्सिमम एज के पेशेंट हैं, तो मैक्सिमम मैंने देखा 64, इससे ऊपर ओके के सर। आज तक कोई पेशेंट आया नहीं है। जी ओके सर। और सर जैसे आपके मैंने इस कोर्स में एनरोल किया है आज ही, है ना, तो सर ये जो क्लासेस होंगी सर, आप उसमें जो हमें दवाइयाँ बताएंगे वो दवाइयाँ ऐसी रहेंगी जो हमें बाजार में सुलभ मिल जाया करेंगी? मैं आपको सारे ऑप्शन दूंगा जो सुलभ मिल जाए, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, क्राइटेरिया वाइज भी, मतलब उसका जो पोटेंसी है, किसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्या द्रव्य है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको मिल जाए, हाँ बाजार जी। में और भी जो मिल जाए, जी, और जो फार्मेसी नहीं के नाम भी मिलती है, बता दो। जो बाजार में नहीं भी मिलती है, कुछ लोग अलग अलग पार्ट से डिफरेंट अपना रहते हैं, तो आपके साथ में रहेंगे हम जुड़े हुए लोग, तो आप भी वहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं, है ना सर? मैं करा सकता हूँ, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप खुद अपने हिसाब से बनाओ, कोई इशू नहीं है। क्या जी दिक्कत है? आप ऐसा कुछ तो है ही नहीं आयुर्वेद में जो मिलता ना हो, कोई ना कोई तो बना ही रहा होगा। जी बाकी जी कई सारे अभी ग्रुप में हमारे इतने एक्सपीरियंस वैद्य हैं, वो जी आपको हेल्प करेंगे, दूसरे लोग हेल्प करेंगे कि ये द्रव्य चाहिए तो ऐसे बना लो या बनवा लो, तो वो जी हेल्प हो जाएगी। डोंट वरी, मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, तो बड़ा इशू नहीं है। जी। ओके ओके, थैंक यू सर। सर सर जो भी कोई अगर कोई भस्म वगैरह बनाना चाहता है तो उसमें मैं उसकी हेल्प कर सर सकता हूँ। ये लो, सर ने अभी आपको बोल दिया। हेलो सर। हेलो। हाँ, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र गहलोत। मैं हेलो हाँ कुछ मैं इस तरह की प्रैक्टिस की है, तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ सबको। जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ब्रह्मश्री गुजरात की एक कंपनी है, जो अभी अभी कुछ साल 2 साल से शुरू हुई है। उन्होंने काफी रिसर्च के बाद एक इलेक्ट्रोश्री करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, जो वर्क करता है और जिसमें टाइम भी नहीं लगता है, कम से कम 2 घंटे पहले देना पड़ता है। इलेक्ट्रोश्री, ब्रह्मश्री आयुर्वेद का, ठीक। और एक कामेश्वर मोदक है जिसमें भंग है। भंग के लिए उत्तराखंड में कुछ कंपनियों को भंग की औषधियों के फार्मूले बनाने का लाइसेंस मिला है, आपको पता ही है करेक्ट जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो भंगा वाली जो विजया वाली दवाई है वो भी काम करती है, मगर वो दिन में नहीं, रात्रि में ही देना चाहिए। और उसमें बीपी जिसका बढ़ा है उसको नहीं देना चाहिए बीपी, या उसको मॉनिटर करने का बोलना चाहिए कि बीपी मॉनिटर करो, ठीक। और ऐसे ही एक और आता है हेम्प स्ट्रीट का नहीं, हेम्प आयुर्वेद का रिवाइव एंड बूस्ट करके प्रोडक्ट है, वो भी काम करता है सेक्सुअल डिसऑर्डर में। और एलईडी आयल एमिल का लोकल एप्लीकेशन, ग्लास पेनिस छोड़ के, ये कुछ औषधियां मैं देता हूं। तो अभी तक जो मैं इस तरह के जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उन सबको संतोषजनक लाभ मिला है। एक की तो साड़ी टूट गई थी, वापस जुड़ गई। बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने को और सुनने को मिलेगी, मैं डिटेल में बताऊंगा। जो जो आपने सब बताया है इनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। क्वेश्चन, और बहुत सारे वैद्यों के मुझे भी क्वेश्चन आ रहे हैं और चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं सर। जो कोर्स तो हमने लास्ट लॉन्च किया था वो एक लोएस्ट लिमिट प्राइस पे लॉन्च किया था, बट आज उसकी लास्ट डेट थी। बट बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको हमें नॉर्मल प्राइस में वापस से शिफ्ट करना चाहिए। तो आप सर जो भी सजेस्ट करें, वी कैन प्रोसीड विद दैट। सो व्हाटएवर यू से सर। देखो डॉक्टर, मेरा मानना ये है कि किसी वजह से कोई इंसान रुक जाए या रह जाए, वो नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप करो, ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें, जाने। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मतलब एक सिर्फ ये कोर्स एक छोटी चीज हो गई, इसके साथ में और भी ज्ञान जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कुछ जूनियर वैद्य स्पेशली है, जूनियर डॉक्टर्स है, उनको सीखने की स्पेशली मिलेगा, या इस फील्ड में जिन्होंने काम नहीं किया है। एक लास्ट में चीज और आपको जी बस जी एड ऑन कर देता हूँ। लॉर्ड धन्वंतरी की कृपा से आयुर्वेद ने इतना दिया है, और इतनी कम उम्र में हम लोग एवरीडे, मतलब समदोष आयुर्वेदा, मैं खुद अपने पैसे से हर दिन 100 लोगों को फ्री में खाना डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। और हमने पुणे से 4 जो कन्याएं हैं उनको हमने गोद लिया है। ये सब कुछ हमारे आयुर्वेद की वजह से हो पा रहा है। मुझे लगता है मैं एलोपैथ में जाता तो शायद ये नहीं कर पाता, मेरी सोच कुछ अलग होती। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी डॉक्टर्स। हम लोग मिलेंगे कोर्स में 20 जुलाई से। इसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और बाद में हमें जो भी चीजें चैलेंजेस आते हैं उन एक एक चीज को टैकल करेंगे।